Hello, everyone. This is Satsang. We are the people who discuss Bitcoin. We discuss freedom tech. We discuss technologies that are likely going to pop up as the next giants in the next 10 to 15 years. With me, I have the host of the podcast, Bhavik Sir, and I am Sambhav. I am the co host of the podcast. Welcome, everyone. So today we are going to speak more on inflation, and then we'll check out the Moody clock to check out Bitcoin statistics, and then we'll check out some other things, some other interesting technologies. Okay, so yeah, let's start with inflation. Yes. How are you? How is rain at your place? It didn't actually rain. We were in Hmm. Chandigarh yesterday, and we saw a forest fire in Himachal. Oh, forest fire. Insane forest fire. Insane At your forest fire. place? In Himachal, not at my place, but somewhere relatively close to my place. Like it's like a 40-minute drive from my place. Okay. It's the forest. That's what the Himachal government always did whenever they wanted to, Hmm. take away the forest for construction. Hmm. They put the forest on fire. They burn thousands of trees, tens of thousands, Yes. at times hundreds of thousands, Yes. and proceed to claim the entire land for themselves for construction Hmm. purposes, destroying Hmm. the natural heritage of Himachal. Because if Himachal loses its trees, it's like you take off the hair of a cat. It doesn't look good. Hmm. Hmm. It's So these people are doing this thing. I think they have been also doing this thing in South America, Brazil, yeah. as you mentioned. Whenever they need land, they light up the forest and yeah. They've been doing this for upwards of 9 years now. Ever since I was in my fourth grade, that's when I first noticed this because Hmm. they didn't exactly put a fire near my house, but they did definitely tear apart all the trees that surrounded my place and Oh. proceeded to build homes there. Hmm. It's depressing if you That's bad. think about what it used to look like. It's Hmm. very depressing. So, like, have you ever thought why they have been able to do this? Like, it's a क्यों कर पा रहे हैं लोग जैसे भारत अब ये पूछ रहा हूँ तब मुझे वो याद आ रहा है कि लाइक इंडिया में और सब जगह पे काफ़ी एनजीओज है काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम है लाइक राइट ये प्रॉब्लम है Right. पॉवर्टी और एवरीवन इज पुअर लिविंग स्टैंडर्ड सबसे कम है सो इन सब का दे they all have been fighting with the government like they all have been doing protest बट किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है मतलब अगर सॉल्यूशन होता तो इतने साल से फाइट कर रहे हो ही जाता लाइक वी वुड हैव come up to some solution Right. but now I think we have solution that is Mhm. bitcoin और ये हम बात Mhm. करेंगे लाइक कैसे हो सकता है लाइक इट्स इन्फ्लेशन एंड फॉरेस्ट फायर and Very interesting. Okay, inflation and let's forest talk fire. about this now. We can talk about inflation in a bit. I'm no curious now. How can Bitcoin fix forest fire? Hmm. Right. How can Bitcoin fix that? So right, I think yeah, I will stick to Hindi more Please. in this show. So इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा लाइक मनी की हिस्ट्री देखो Mhm. लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट मनी हिस्ट्री ऑफ It's मनी व्हाट been डू यू नो used अबाउट as a medium of exchange. It's just people exchanging value, exchanging time. हम्म तो ये पेपर है पेपर मनी लाइक पेपर मनी गोल्ड व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मनी again asking the same question what do you know about the history of money
for the last 5,000 years, and more specifically last 500 years, and even more specifically more last 100 years, and even more Okay. specifically last 50 years, literally. Right. Yes. So what we call money as a Hmm. paper, it's not the best money ever. It's you can I mean it's Hmm. us giving the authority Hmm. of having money to Hmm. someone else that can indefinitely print more money, Hmm. which Right. will decrease the value of the cash I hold. And that's just unfair. Right. That's just unfair. No one else should have the right to Right. take away my the value from my money, right? Because they're not taking away my money itself. They're taking away value from my money. Yeah, they're stealing. Literally, like it's literally they are That's stealing. stealing. Hmm. Yeah, that's stealing. Yeah. So when did they implement this thing, and now, and why nobody is opposing? Why any government, like every government is doing the same thing? Right. Every government of this planet, सब लोग print कर रहा है. कब हुआ ये? So What do you know? it started. I think it started when uh the I think it started when America went off the gold standard. I think that's when it Hmm. started. That's when they Yes. started printing money like Hmm. crazy, Hmm. and then everything else just boosted their money printing habits. Right. Do you know the year? Exact year? I I think it was 1919 or 1930. I don't remember the year. 1971. 1971. 1971. Oh, Yes. okay. So, like, मैं ब्रीफ में बताता हूँ. हाँ हाँ. 500 साल पहले Mhm. like people were used to trade gold. कोई भी आइटम लेनी है तो गोल्ड के बदले गोल्ड लेते थे, बट कोई छोटे Mhm. ट्रांजेक्शन के लिए उनको हार्ड पड़ा ट्रांजेक्शन करना. सो Mhm. कुछ बैंक्स आई इन इन यूएसए ओनली, इन अमेरिका ओनली, 18 सेंचुरी, 1790 स्पेसिफिकली. एक बैंक, कुछ Mhm. बैंकों ने, कुछ नाम भी है उस बैंक का. सो तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड के सामने पेपर इशू करना स्टार्ट किया, सर्टिफिकेट. और जो सुनार लोग थे ना, गोल्ड स्मिथ, वो भी ऐसे Mhm. करते थे. वो खुद गोल्ड रखते थे और सर्टिफिकेट देते थे, और वो सर्टिफिकेट लोग ट्रेड करते थे, बिकॉज सब एक गोल्ड स्मिथ का यूनियन था, और छोटे मोटे सिटीज में ऐसा हुआ था. आई थिंक इट स्टार्टेड इन मैक्सिको. मैं थोड़ा हिस्ट्री देख रहा था, Mhm. पर कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि कहीं लाइक एनीवेयर अराउंड 18 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी के मिड समथिंग में क्या स्टार्ट हुआ कि गोल्ड के बदले पेपर देना स्टार्ट किया. सो अगर मैं एक टुकड़ा इतना बड़ा गोल्ड का देता हूँ, तो लाइक, पर मुझे छोटी सी चीज़ ही बाई करनी है, लाइक टोमेटो बाई करना है, तो ये Mhm. टुकड़े के लिए तो पूरा पूरा 10 किलो टोमेटो आ जाएगा एज्यूम. तो Mhm. आई नीड ओनली 1 kg, तो मुझे इसका पार्ट करना है, छोटा पार्ट करना है, तो वो डुएबल Mhm. नहीं है. लाइक इट्स नॉट डिविजिबल. मनी वाज नॉट Mhm. डिविजिबल, गोल्ड वाज नॉट डिविजिबल. तो कॉइन्स, Mhm. गवर्नमेंट, राजा ने कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किए. तो Mhm. कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किए, तो कॉइन्स में चलो ठीक है, पर उसमें भी और भी प्रॉब्लम आती गई. कॉइन्स में राजा बोलता था Mhm. कि ये कॉइन में इतना इतना गोल्ड है. सो होता गया, Mhm. बट फिर भी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आती गई. तो कॉइन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि लाइक लेट्स ऐड सम सिल्वर, लेट्स ऐड सम कॉपर, ये सब ऐड करते गए. Mhm. धीरे धीरे वो चलता Mhm. रहा. फिर वो हैवी होता रहा. तो जब Mhm. पेपर की डिस्कवरी हुई, देन दे स्टार्टेड इशूइंग पेपर इंस्टेड ऑफ गोल्ड. तो Right. वो पेपर है, वो दैट दैट पेपर, नॉट द सर्टिफिकेट, इज द क्लेम ऑन गोल्ड. दैट इज क्लेम ऑन गोल्ड. Right. ठीक है. Mhm. तो वो गोल्ड पे क्लेम है कि भाई उतना गोल्ड है. फिर क्या करने लग गए कि ऑडिटेबिलिटी इतनी नहीं रही, कि Mhm. भाई गोल्ड स्मिथ है कि बैंक के, वो इतना गोल्ड होल्ड कर रहा है कि नहीं. तो वो दे स्टार्टेड इशूइंग मोर सर्टिफिकेट्स इंस्टेड ऑफ लाइक जितना वो गोल्ड होल्ड कर रहा है. सो दैट्स Mhm. लाइक वो स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. तो ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग स्टार्ट Mhm. हुआ कि फ्रैक्शन, Mhm. समझ में आया ना, मतलब कि फुल हाँ बैकअप नहीं हाँ. है, रिजर्व और फ्रैक्शन होने लग गया. सो उनको Mhm. ये पता नहीं चला, लाइक, तो उससे क्या हुआ कि वो चोरी हुई, राइट. Mhm. दैट यू ऑल्सो नो कि अगर मेरे पास इतना गोल्ड है, तो मुझे सामने कोई कस्टमर ने मुझे गोल्ड दिया, मैंने उसको उतना ही सर्टिफिकेट नोट दे दी, तो मुझे अब उसको Mhm. गोल्ड देना है.
अब और कोई बंदा आ रहा है तो उसको भी मैं बोल रहा हूँ ये ले पेपर नोट ले ले, मुझे इंटरेस्ट ब्याज पे दे रहा हूँ मैं, इश्यू कर दी, मैं लिख दिया, नोट लिख दिया, पेपर सर्टिफिकेट लिख दिया, दैट इज करेंसी, जो वही नोट की शुरुआत उससे ही हुई थी। सो मैंने लिख दिया और वो ब्याज पे देगा कुछ पैसे। बट तो अब मुझे एक ही गोल्ड पे 2 लोग का क्लेम है पेपर, क्योंकि वो राइट। दैट सर्टिफिकेट इज द क्लेम ऑन गोल्ड। सो चलो ठीक है, मतलब वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा बैंक को अच्छे से। बट इससे हुआ क्या कि पहले वही एक ही सर्टिफिकेट था, वो मार्केट में चीजें खरीद रहा था, लाइक वो दैट द राइट। मनी वाज चेजिंग सम गुड्स। अब डबल करेंसी, डबल मनी मार्केट को चेस कर रही है उसी सेम चीज को। सो उससे क्या हुआ कि तुम्हारी जो पेपर की वैल्यू है वो कम हुई। तो ऐसा होता गया फिर 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में अब फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1913-14 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई, और फेडरल रिजर्व फ्रॉम फेडरल रिजर्व ने ऐसा बोला कि कोई भी बैंक शुड नॉट बी एबल टू इश्यू द गवर्नमेंट दैट गोल्ड सर्टिफिकेट। एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई, वो इश्यू करेगी, और बाकी सब लोग वही नोट यूज करेंगे। तो पहले उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, दैट इज गोल्ड, उससे तब गोल्ड स्टैंडर्ड आया। उस योर वीडियो इज लैगिंग, बट आई होप कि लोकली अच्छा रिकॉर्ड हो रहा होगा। इट्स वेरी ब्लर, बट आई होप कि लोकली अच्छा हो रहा होगा लोकली। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लाइक एज लॉन्ग एज यू कैन हियर मी दैट्स गुड। राइट। ओके। सो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ, सारे कंट्रीज ने गोल्ड जमा किया यूएस में, और उनकी करेंसी पैक होती गई, लाइक डॉलर वाज पैक टू गोल्ड एंड एवरी करेंसी वाज पैक टू द डॉलर। फिर उसके बाद 1945 से लेके 60 70 तक यूएस ने मनी प्रिंटिंग अपना खुद स्टार्ट किया। तो उसके पास वो गोल्ड को भी डिवैल्यू कर रहा है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है, और बाकी करेंसी गोल्ड से डीप पैक है, तो वो करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है। तो जैसे सबको पता चला, कुछ कुछ कंट्रीज को पता चला, तो वो लोग अपना गोल्ड लेके आ गए, भाई मुझे अपना गोल्ड दो वापस। तो वो जर्मनी ने तो अपना प्लेन एयर मिलिट्री प्लेन भी भेजा था 65 समथिंग में, और 20 साल में यूएस का काफी रिजर्व खत्म भी हो गया था। 71 में रिचर्ड निक्सन ने बोला कि नो, वी कैन नॉट, वी आर एंडिंग द गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी, अब कोई गोल्ड नहीं रहेगा, डॉलर इज द रिजर्व करेंसी, और सब लोग डॉलर से ट्रेड करेंगे, और हम कभी भी मनी इशू कर सकता है। तो अब ये सारी प्रोसेस ही अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, और वैसे देखा जाए तो इतनी इजी है, एक बार समझ में आ गई तो इजी है, पर इससे लाइक दे आर इंक्रीजिंग द मनी विदाउट डूइंग वर्क। तो पहले एक वर्क के लिए इतनी मनी थी, अब उसी वर्क के लिए ज्यादा मनी है, उसी वर्क के लिए ज्यादा मनी है, तो पर मनी की वर्क कम हुआ, बट वर्क इज गुड, सेल्स एवरी सब कुछ। सो अब ये बात करते हैं कि चला आ रहा है 1971 से चला आ रहा है इंडिया में। पिछले 24 साल में देखो तो हर साल इंडिया का जो डाटा है, हर साल भारत में मनी की जो सप्लाई है, रुपये की सप्लाई, वो 14 से 15% के रेट से इंक्रीज हुई है, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब ये केस समझो, लाइक ये चीज ये बहुत फंडामेंटल चीज है, और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, सो बने रहिए, लाइक स्टिक टू द वीडियो, और समझिए कि कैसे मनी प्रिंटिंग एक चोरी है, और उसी के कारण सारी जो भी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, वो सारी इससे सोल्व हो सकती है, क्योंकि बिकॉज इकोनॉमी है, सोसाइटी है, वो एक दूसरे के ट्रेड से चलती है। विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, वो वर्बल लैंग्वेज, हम सबको, लाइक व्हेन आई से एप्पल, तो आपको भी पता है कि वो एप्पल है, सबको पता है एप्पल है, तो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इज द वे टू कम्युनिकेट आइडियाज। पर अब जब हमें वैल्यूज एक्सचेंज करनी है, तो हमें मनी अपने आप अपीयर हुई, गोल्ड अपीयर हुआ, उससे पहले सिल्वर था, कॉपर था, शेल भी ये लोग यूज करते थे, येप आइलैंड, येप स्टोन थे कहीं पे, येप आइलैंड या समथिंग, क्या नाम था उसका, राइस स्टोन थे येप आइलैंड्स में, दैट इज इन पैसिफिक, आई थिंक अटलांटिक ओशियन में है।
अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटी सी कंट्री है। तो वो क्या करते थे, एक पत्थर स्पेसिफिक वो अलग ही पत्थर था, कहीं दूर वही वो पत्थर उधर ही अवेलेबल था, तो वहीं से वो लाते थे, उसको गोल काटते थे और उस पत्थर की कुछ कीमत थी। तो गांव में जितनी भी रिसोर्सेज थे उन सब की कीमत वैल्यू उतने स्टोन थे, और वो स्टोन बनाना हार्ड था, मेहनत लगती थी। तो वहाँ की जो पंचायत थी, वहाँ की बैंक थी, वो बनाती थी, और जब भी कोई चीज़ कोई प्रोड्यूस करता है तो सामने उतनी वो मनी कर रखते थे। फिर जब फ्रेंच आए शायद 18th सेंचुरी समथिंग में, जब शिप वगैरह आ गई, तब उनको पता चला कि इस गांव में, इस आइलैंड पे करेंसी है, वो स्टोन है, राइस स्टोन बोलते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थर होते थे। और एक्चुअली इफ यू गूगल राइस स्टोन तो दिख भी जाता है, RAI स्टोन। तो अभी भी वो अवेलेबल है, म्यूजियम में भी रखे हुए हैं। तो वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी फ्रेंच, और उनके पास काटने मस में टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उन्होंने वो पत्थर ला ला के गांव में आना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो सप्लाई बढ़ा दी उन्होंने। तो पहले मान की 100 स्टोन्स थे, अब बाहर से मैं 100 स्टोन ले आया और मैं बोल रहा हूँ कि 2 स्टोन देके बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ दे दो, तो गांव वाले तो उसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि अब तक कर रहे थे, उनके लिए तो वो मनी है, उनको कहाँ पता कहाँ से आई है, बाहर से आई है। तो जब ये पता चला कि मतलब मैं बाहर से आके पत्थर कुछ अपनी चीज लाके गांव की रिसोर्सेज को खरीद पा रहा था, आई वॉज एबल टू बाई द रिसोर्सेज ऑफ द विलेजेस। सो वो द बैंक ऑफ दैट विलेज उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, अपना अपना जो पत्थर है वही चलेगा, वो लोग ला रहे हैं वो नहीं चलेगा, राइट। तो भी लोग तो यूज करते ही रहे, आखिर में वो गांव सारा फ्रेंच के अंडर कंट्रोल में आ गया, सारे रिसोर्सेज खरीद लिए, और बैंक सब लोग ने अपनी वेल्थ घुमा ली। क्योंकि जैसे आज ही अगर सोना है, हमने सोना रखा है घर में, अपने पास 10 तोला सोना है, 1 किलो सोना है घर पे, ठीक है। अगर अगर लिटरली कहीं पे ऐसा हुआ कि सोने की वर्षा हो गई, सोने की बारिश हो गई, या फिर ऐसे एक मिला कि सोने इतना गोल्ड मिला कि जो कॉपर एल्यूमिनियम जितना है उससे भी ज़्यादा गोल्ड है अर्थ में, इतना अगर मिला और इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या गोल्ड की वैल्यू, क्या वैल्यू में से उसकी होती है जो चीज़ स्कैर्स हो, ट्रांसपोर्ट हो पाए, और जो सड़े ना, जो टाइम स्पेस टाइम पे वी कैन कैरी। तो ये तुमने देख, अब ये जो किया वो मनी का थोड़ा सा किया है, ठीक है। बट 71 में दे इंट्रोड्यूस्ड फियाट स्टैंडर्ड, उसमें गोल्ड हटा दिया, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी। तो मनी प्रिंट से क्या होगा कि हमारी वैल्यू कम होगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वैल्यू चुराई, ये ठीक है। अब ये उनका रेट है, इंडिया में रेट, डॉलर का रेट है 10 से 12%, इंडिया का रेट है 14%, ठीक है। और डॉलर के सामने जो रुपया है वो भी 10-12% से 5-6% से डिवेल्यू हो रहा है पिछले कुछ साल में। तो पर अपन रुपये की बात करते हैं, तो रुपया 13.8% लास्ट 24 ईयर्स का डाटा है। इफ यू गो टू porcopolis.com, PORKOPOLIS, and if you want to follow that man, that is Matthew Mezinski, but like Porcopolis वेबसाइट है। सो लाइक मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट ओपनिंग द वेबसाइट, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि और इंडियन गवर्नमेंट में डाटा हम RTI करेंगे तो पता चल जाएगा। सो 13.8% के रेट से अपनी मनी करेंसी सप्लाई बढ़ी है, ये ठीक है। अब समझो, अब ये सारी चीज साइड में रखो, लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। अब कोई कंट्री है, उसमें मनी सप्लाई फिक्स्ड है, लेट्स एज्यूम कि भारत है, उसमें 100 करोड़ रुपीज है सिर्फ, ठीक है। ना वो कोई प्रिंट कर सकता है, ना कोई उसकी कॉपी पेस्ट कर सकता है, लाइक डुप्लीकेट नोट भी बनाना हार्ड है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। आइडियल सिचुएशन, 100 करोड़ रुपीज, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 पैसा इज इक्वल टू 100 कोड़ी। लेट्स मेक इट डिविजिबल वेन एवर वी नीड, ओके। सो अब एक साल में ऐसा होता है कि 1.5 बिलियन लोग काम कर रहे हैं, एवरीवन इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, लाइक हम पिछले दिन के कंपेयर में एवरीडे हम वी प्रोड्यूस मोर कार्स, वी प्रोड्यूस मोर फोन्स। सो क्या कर रहे हैं कि हम लाइक यूनिवर्स इज फुल ऑफ एंट्रोपी, पर हम उसमें से केओस में से एक ऑर्डर बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना दिया, फोन बना दिया, जिससे एवरीवन, जो लाइफ है सबकी, बैलगाड़ी थी तो घोड़े आ गए, इंजन आ गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, तो ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया, लाइक हम मूव भी फास्ट कर सकते हैं,
आइडियाज से हम और लैंग्वेज डेवलप होती जा रही है, सो वी कैन कम्युनिकेट मोर आइडियाज, लाइक फिलोसॉफी डेवलप हो रही है बिकॉज व्हेन यू हम्म, नो फ्रॉम योर वर्क, वो ठीक है, लैंग्वेज डेवलप हो रही है, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, everything is becoming faster and cheaper. लाइक कैलकुलेटर आज फ्री है, राइट, कैलकुलेटर आज right. फ्री जैसा ही है, फोटोग्राफी भी फ्री है, बात वीडियो कॉल करना भी फ्री है आज, लाइक ऑलमोस्ट फ्री, लाइक यू जस्ट हम्म, पे 500 रुपीज पर मंथ इंटरनेट, उसमें लाइक यू कैन वीडियो कॉल अनलिमिटेड, यू कैन वॉच, यू आप जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट, आप लाइक आप हम्म, यूपीएससी प्रिपरेशन जो 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम्म, अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो हो क्या रहा है, हम्म, एवरीवन इज वर्किंग, हर कोई हम्म, वैल्यू, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वैल्यू, और हम्म, उसके उसके बदले में वो वैल्यू देंगे, सामने वैल्यू लेंगे भी, हम्म. और एवरीवन इज, यहाँ तक संभव, यू आर विथ मी, Yes, I'm with you. है ना, सो हर कोई वैल्यू प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा है, एवरीवन इज एक्सपर्ट इन हिज ओन एक्सपर्टीज, और हर को लेकिन ऐसा नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सबको ही पेंटिंग पसंद है, या फिर सबको ही कोडिंग पसंद है, या सबको ही पॉलिटिक्स पसंद है, जो जिसको जो जो पसंद है वो करता है, ताकि वो Right. उसमें और अच्छे से प्रोड्यूस कर, जैसे मछली मछली पकड़ने वाला है, फिशिंग वाला है, वो उसको फिशिंग करनी है, तो वो Hmm. फिशिंग करेगा, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, वो थोड़ा सा प्रॉफिट इन्वेस्ट करेगा और अच्छे फिशिंग टूल्स बनाने में, बड़ी नेट बनाएगा, ज़्यादा फिश बनाएगा, ज़्यादा फिश लाएगा, Right. और प्रॉफिट आएगा उसका। ये समझो कि 10 लोग और है, या फिर भारत देश में काफ़ी लोग फिशिंग कर रहे हैं, सो अगर Hmm. इफ वन है वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट, तो उनको Hmm. सस्ते से सस्ती फिशिंग देनी पड़ेगी और अच्छे से क्वालिटी देनी पड़ेगी, सो Hmm. दे इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर बिजनेस, अच्छी बड़ी बड़ी नाव बनाएंगे ताकि और समुद्र में डीपर जाए। Right. सो कहने का हाँ. मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हो रही है, बट Hmm. स्टिल मनी इज 100 बिलियन, 100 करोड़ ही रुपए है भारत में। तो Hmm. जब वो मार्केट में जाएंगे कोई बेचने, तो उसके पास उनकी वैल्यू टोटल कितनी हुई सारे गुड्स की, 100 करोड़ ही हुई। Hmm. तो पहले 10 साल पहले अगर 1 रुपीज में 10 फिश आ रही थी, अब 10 साल Hmm. बाद मार्केट में और गुड्स है, सबकी वैल्यू मनी से तुम नाप रहे हो, और वाई, Hmm. और ये क्यों कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है कि देखो कि हमें एक, दैट इज अवर टाइम, हर Hmm. कोई इकोनॉमी में अपना इनपुट दे रहा है, जॉब पढ़ाई करेगा, स्किल डेवलप करेगा इंटरेस्ट के हिसाब से, देन ही लाइक देन ही विल वेंचर इनटू जॉब्स और बिजनेस। तो वो Hmm. अपना टाइम, अपना स्किल, अपनी एनर्जी देके Hmm. देगा, रिटर्न में Hmm. वो चीज रखेगा कि जो उसको बाद में काम आए। Hmm. तो वो जो चीज बन पाई, दैट इज मनी, कि भाई ना Right. उसको कोई मैं इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर पाऊँ, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, Hmm. डिविजिबल होना चाहिए, स्टोर कर देना चाहिए, और ऐसा Hmm. नहीं कि मतलब मैं एप्पल नहीं रखूंगा, एप्पल सड़ जाएंगे, 2 साल तक नहीं रखूंगा, है ना। Hmm. अगर कोई एक किसान है और वो वेजिटेबल्स उगा रहा है, तो उसने Hmm. 6 मंथ में कोई वेजिटेबल्स उगाया, अब वो इतना ज़्यादा है, वो सारा देख के बोलेगा कि मुझे आज क्या चाहिए, आज सब्जी रोटी चाहिए खाने के लिए, तो वो Hmm. लाइक वो इतना ज़्यादा है कि ही हैज़ टू स्टोर समवेयर, बट वो एप्पल में वेजिटेबल में Right. स्टोर नहीं कर सकता, उसको वो उसमें स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे लंबे टाइम तक स्टोर कर सके, अगली जनरेशन को भी दे सके। तो Right. ऐसे करके, तो वो रेयर चीज़ें में वो डालना शुरू किया कि जो रेयर है, जिसको बनाने में भी मेहनत लगती हो, तो लोगों ने कॉपर में किया, शेल जो होती थी उसमें किया, जो हमने बात करी, राइस स्टोन, जो चीज़ इनपुट, जो Right. उसको मनी कहा गया। तो मनी हाँ. प्रॉपर्टी में क्या आया कि वो स्केलेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और Hmm. स्पेस टाइम पे प्रिजर्व होना चाहिए, वैल्यू उसकी Hmm. खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना मतलब जैसे कोई सप्लाई बढ़ा देगा वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वो मनी ने Hmm. स्थान लिया पिछले 5,000 साल से, गोल्ड वॉज प्लेइंग दैट रोल। 200 Hmm. 300 साल पहले, और खास करके 100 साल पहले उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, और खास करके 50 साल पहले गोल्ड स्टैंडर्ड एकदम हटा दिया, एकदम Hmm. प्योर हटा दिया, ऐसे कहो। Hmm. सो तब से सिर्फ पेपर ही है। तो अब हर किसी को सैलरी पेपर नोट में मिल रही है, Hmm. वो पेपर नोट है 15% के रेट से, अब हम इन्फ्लेशन पे आ चुके हैं, 15-14% के रेट से भारत में इन्फ्लेट हो रही है, मतलब इसका मतलब Hmm. कि आज
लेकिन सामने इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विस भी प्रोड्यूस कर रही है, हम्म, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, राइट? सो हाँ, अगर मनी सप्लाई फिक्स्ड है, हम्म, टोटल फिक्स सप्लाई है, तो आज मेरे दिस साल, लाइक लेट्स एज्यूम 2024, इस साल में मेरा साल का खर्चा जितने रुपए में चला, हम्म, नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी भी कम होगी, क्योंकि अब नए हम्म, लोग मार्केट में ऐड हो रहे हैं जॉब में। हम्म, अगर ज्यादा से ज्यादा मेरी सैलरी सेम हो सकती है, इंक्रीज होना तो बहुत हम्म, मुश्किल हो जाएगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो, क्योंकि उतने ही नोट है, हम्म, ज्यादा लोग और मार्केट में आ चुके हैं। तो क्या होगा, हाँ, पहले मुझे और 1000 रुपये सैलरी मिलती थी, अब मुझे शायद 950 या 900 मिले। बट हम्म, होगा क्या, क्योंकि 100 करोड़ रुपीज है, या उस 100 करोड़ रुपीज में से कुछ रुपीज लोगों ने सेव कर रखा है, जो जो रुपीज मार्केट में घूम रहा है, वो हम्म, रुपीज लोगों की सैलरी में वैल्यूज में जाएगा, लाइक वो इकोनॉमी को चला रहा है, बाकी के वैल्यू स्टोर है, राइट, जिसने वैल्यू अपनी आगे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखी है ना। सारा पैसा हम नहीं राइट, खर्च करते, हम्म, कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ पैसा हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, वो सैलरी हमें मिल रही है। तो पहले 1000 मिल रही थी, अब 900 मिल रही है। बट हम्म, इकोनॉमी डेवलप हुई है, तो इसका मतलब कि पहले मेरा खर्चा जितना मान के 1000 रुपये मेरा सारे खर्च हो जा रहे थे सेम, तो अब नेक्स्ट ईयर मेरे को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 900 रुपीज में मेरा हो जाएगा। अगर राइट, ऐसा हुआ तो हम, ये आइडियल सिचुएशन है। हमने काफी नॉइज रहा दी, एब्सोल्यूट बात करी है, हमने एब्सोल्यूट बात करी है। सो इसमें होगा क्या कि 10% कम लगा पैसा मुझे, आई नीड हम्म, 10% लेस मनी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट मीन्स हाँ, दैट कि ऑन एवरेज भारत की इकोनॉमी 10% ग्रो हुई, हम्म, स्टिल इट इज 100 करोड़। सो अभी जो जीडीपी के हाँ, फिगर दिखा रहे हैं वो सारे फ्रॉड है, वो सारे मैनिपुलेटेड है। राइट, वो पूरा, हम्म, क्योंकि हम जिससे मेजर कर रहे हैं उसकी सप्लाई ही बढ़ रही है, और उसकी सप्लाई कितनी हम्म, बढ़ रही है वो हमें बताते नहीं है, क्योंकि वो जानना भी मुश्किल है। वो कैसे करते हम्म, हैं वो उस पर बाद में आते हैं। पर अब इससे क्या होगा कि 14% रेट से अपनी मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है हर साल हम्म, 14%। तो 5 साल में डबल हो जाएगी। इफ यू 14% हम्म, रेट से मिक्स करो कोई सप्लाई को, तो फाइव हम्म, 5 साल में मनी सप्लाई डबल हो जाएगी। तो 5 साल बाद हम्म, भारत में 100 की जगह 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। हम्म, अब ये मानते हैं कि इकोनॉमी भी हर साल 14% डेवलप हुई, ये मानना नहीं है, ये समझो कि भारत सरकार 14% से रेट से इंक्रीज सप्लाई बढ़ा रही है, फिर भी हमारा खर्चा उतने रुपए में ही चल रहा है जितना पहले चल रहा था। हम्म, वो कैसे होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखो ये कि पहले मुझे 1 लाख सैलरी मिल रही थी, अब मुझे एक हाँ, लाख चौदह हजार सैलरी मिलेगी। हाँ, अगर, क्योंकि उन्होंने मनी प्रिंटिंग बढ़ाई, और मेरी हर इंसान की सैलरी मनी प्रिंटिंग जितनी मनी सप्लाई बढ़ रही है उस रेट से अगर सैलरी हम्म, बढ़ती है, तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ हम्म, लिविंग सेम रहे, सबका भाव फिक्स रहेगा। हाँ, फिर वो भाव डिपेंड करेगा कितनी उसमें प्रोडक्टिविटी हो रही है, किसमें इतना इनोवेशन हो रहा है। हाँ, राइट, हाँ, ठीक है। अब तुझे कोई हम्म, बीच में क्वेश्चन है तो बता इसमें पहले तो। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लियर। इट्स जस्ट कि जितना प्रिंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कितना कमा रहे हो एज अ पर्सन, हम्म ये आपका लाइफस्टाइल डिक्टेट करेगा। दैट्स व्हाट आई हम्म हैव गॉटन फ्रॉम इट, राइट? ओके, ठीक है। लेकिन सैलरी उस रेट से नहीं बढ़ती जिस तरह से मनी ब्रांडिंग करते हैं वो लोग, मनी सप्लाई हम्म, बढ़ाते हैं, उससे नहीं बढ़ती है। मनी सप्लाई काफी रेट से बढ़ती है। तो पहले तो हम हम्म, इसमें आता है कि 14% रेट से उन्होंने सप्लाई बढ़ाई, तो मेरा हम्म, जो सेविंग था हम्म, दैट गॉट हार्ड इन 5 years, उसकी परचेसिंग पावर हाफ हो गई। हम्म, मैं आगे मेरी सैलरी बढ़ रही है 14% रेट से, ठीक है, पर वो नहीं हम्म, बढ़ेगी, नहीं बढ़ती, दैट नॉट पॉसिबल। तो भी अगर सैलरी भी इतनी बढ़ती है तो भी सेविंग तो गई, सेविंग लूट रहा है, सेविंग राइट, तो जा ही रही है। वो जो हमारी 14% सैलरी जो आ रही है इंक्रीज होके, वो सेविंग से आ रही है हर किसी को। ये एकदम एब्सोल्यूट सिचुएशन है, बट सेविंग तो गई। 5 साल में मेरी सेविंग हाफ हो गई। सो आई विल नॉट बी इंसेंटिवाइज टू सेव, और मैं स्पेंड हम्म, करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहता, जो मेरा प्लान के अकॉर्डिंग मुझे मुझे पता है कि मुझे 10 साल बाद पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे कुछ पैसा में, क्योंकि वो पता है कि वैल्यू खत्म हो जाती तो तुम उसकी मैटर वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू नहीं होती उसको तुम ही वैल्यू नहीं करते। जो चीज अपनी वैल्यू राइट, खो देता है उसको तुम वैल्यू नहीं करते। राइट, सो
तो वो सेविंग गई। अब क्या हुआ कि पहले इसमें आता है कि थोड़ा सा कि ये लोग कैसे अपनी मनी सप्लाई बढ़ाते हैं। भारत में बैंक का रूल है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज 4.5%, 4.5%। उसमें ऐसा है कि इफ यू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज, 4.5% बैंक रखेगी, बाकी का वो आगे लोन दे देगी। मैं जाऊंगा, मुझे लोन दे देगी। राइट मैंने राइट लोन गया, मैंने कुछ चीज़ ली, मैंने आगे बैंक में डिपॉजिट, जिसको भी मुझे लोन की ज़रूरत थी, मुझे किसी को पैसे देने थे, मैंने दिए। बाइक ली मैंने, बाइक वाले को दिया, पैसा जमा किया, बाइक वाले ने बैंक में रखा अगर, तो फिर से बैंक उसमें 4.5% रखेगी, 95.5% लोन आउट कर देगी। अगर ये आप 10 बार करते हो, 10 बार ऐसा होता राइट है, सो यू ऑलरेडी गिव लोन अराउंड 8 से 10 लाख रुपए लोन देते हो। इफ यू डू इट 15 टाइम्स, तो अराउंड 12-13, मतलब 20-25 बार अगर ये आगे पैसा घूमता है, तो ये 20 लाख, 1 लाख का 20 लाख बन गया। कहने का मतलब ये समझो कि अब ये बैंक के ऊपर डिपेंड है कि बैंक कितने लोन वाले कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है राइट ना। मतलब कोई सामने लोन लेना ही नहीं किसी को, तो वो आगे पैसा जाएगा नहीं। बट इसलिए दे गिव सो मच डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स कि ये खरीद लो, तुम्हारा इंटरेस्ट, बैंक अपना इंटरेस्ट कम कर देती है, क्योंकि उसको वो डिपॉजिट वाले को कम इंटरेस्ट देंगे। पर कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर जितना बैलेंस में लोगों को पैसा दिखा रहा है ना बैंक में, उसका 5% ही रियल में पैसा है उनके पास, बाकी इसका पैसा उसके पास है, उसका पैसा इसके पास है, वो सारी गिनती है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या कि सप्लाई आर्टिफिशियल इंक्रीज हो गई। तो पहले तेरा 1 लाख रुपया जो बैंक में जमा पड़ा था, वो पड़ा था, दैट वाज योर सेविंग। अब वो पैसा मुझे लोन मिल गया, तो मैंने एक बाइक खरीदी, तो आई एम समहाउ, बैंक इज इंड्यूसिंग द डिमांड ऑफ बाइक। मुझे लोन मिली तब जाके मैंने किया, ठीक है। और ऐसी बात नहीं लोन खराब है, लोन लाइक यू कैन गिव, बैंक कैन टेल यू कि भाई आपका 1 लाख रुपया या 95,000 में लोन दिया है आगे, सो नाउ यू हैव ओनली 5,000 रुपीज। वो करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक तुझे भी 1 लाख रुपए दे देगी, कभी भी वो उठाने के लिए देगी तुझे। और मैं बाइक ले ली आगे, फिर वो 95,000 फिर गया, तो नंबर ही उनको बढ़ाने हैं, तो नंबर बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस में बैंक अपना इंटरेस्ट खाती है, तो बैंक तो हो पा रही है कंट्रोल। अब उससे क्या हुआ कि लोगों ने जमा किया पैसा, सो बैंक हैव एन से कि उसको किसको लोन देना है, क्योंकि उसके बाद इतना डिपॉजिट आ गई, किसी की लाख, किसी की 2 लाख, तो ऐसे मानो कि 1 लाख करोड़ डिपॉजिट आ गई बैंक के पास, तो वो बैंक उसको चाहे उसको लोन दे सकती है। तो वो किसको लोन देगी, जो कनेक्शंस है, जिसके थोड़े बिजनेस है, जिसकी थोड़ी क्रेडिट है, जिसने कुछ मार्केट में करके दिखाया है, तो थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी मैटर करता है। थोड़ा तुम्हारे पास अगर जमीन है तो तुम्हें लोन मिल जाएगी। पर कहने का मतलब कि बैंक को लोन देनी ही है, सामने उसको चाहिए कोई ट्रस्टवर्दी क्लाइंट। तो इन अ वे 4.5% जो अपना डिजिट है, उससे समहाउ लाइक लाख की जगह 5% ही है, सो 20 टाइम्स लेस है, सो 20 टाइम्स सप्लाई बढ़ी हुई है मनी की। अब ये डिफरेंट डिफरेंट रेट से होता है, कोई टाइम पे बैंक ज्यादा लोन देती थी, फास्ट में लोग लोन की डिमांड होती है तो ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ती है। लेकिन वो अब देखो ये ट्रैकेबल नहीं है ना, कि हमें क्या पता किसने, बैंक ने कितना आगे लोन दिया, ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब अभी भी जैसे जहां बैंक लोन दे रही है, वहां हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लाइक नंबर जस्ट अपीयर, है ना। अगर तू लोन लेने जाएगा, इफ यू गो टेक लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज भारत में सप्लाई बढ़ी मनी की, तो टोटल समथिंग है 1 करोड़ है टोटल सप्लाई, और तूने 1 लाख की लोन ली, सो अब पैसा है 1 करोड़ 1 लाख, सो बाकी सबकी मनी 1% के रेट से डिवैल्यू हुई। सो इन एन एवरेज भारत सरकार इज इंक्रीजिंग देयर मनी सप्लाई एट द रेट ऑफ 13.8%, 14%, ये ऑफिशियल फिगर है, ठीक है। तो अब 5 साल में हमारी वैल्यू हाफ हो गई, यहाँ तक ठीक है। 5 साल में हमारी वैल्यू हाफ हो गई, 10 साल में 1/4 हो गई, 15 साल में 1/8 हो गई, और 16 साल में 1/16 हो गई। 20 हाफ, 5 साल में हाफ, 1/4, 1/8, 1/6, 20 साल में 1/16 हो गई। सो लाख की कीमत मेरी 5,000 ही रह गई, 6,000 ही रह गई।
7,000 रहेगी। कहने का मतलब कि आफ्टर 20 ईयर्स जो मैंने लाख रुपया सेविंग किया था 20 साल पहले, जो सैलरी मेरा टाइम था, दैट वाज माय टाइम, दैट वाज माय, और टाइम ही तो है मनी। और उस समय पे मार्केट में जो पैसा मिला था, जो मनी थी, और वो मनी किसने दी थी मुझे? दैट वाज आल्सो टाइम। वो गोल्ड से आया था सब, और गोल्ड है वो मेहनत करके निकला था। लोगों ने उस वो बंदे ने जब गोल्ड बेचा उसको भी सामने कुछ मिला होगा, तो वो भी सब, वो गोल्ड भी के पीछे भी वर्क जुड़ा हुआ है। सो वर्क, टाइम एंड स्किल, मतलब एनर्जी, टाइम एंड स्किल हर जगह जुड़ी हुई है। मनी है वो एनर्जी, टाइम एंड स्किल, एनर्जी, टाइम एंड स्किल का मिक्सअप है। वी एक्सचेंज आवर एनर्जी एंड आवर टाइम एंड आवर स्किल अगेंस्ट मनी, विद द, लाइक अगेंस्ट मनी, या मनी के सामने करते हैं। सो कहाँ थे हम कि मेरी वैल्यू, मेरी आपकी 20 साल में, डिवैल्यूएट हो गई। या हाँ राइट, तो लाख रुपए के मैंने पढ़े थे, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, 7,000 रही वैल्यू। हाँ मतलब कि वो लाख रुपए 20 साल पहले जो मैंने खरीद रहा था, नाउ आई नीड 16 टाइम्स मोर, क्योंकि 16 टाइम्स डिवैल्यू हुआ है, तो नाउ आई नीड 16 लाख। हर 5 साल में आधी हो रही है मेरी वैल्यू, तो 5 साल बाद आई नीड 2 लाख टू बाई द सेम थिंग। 10 साल बाद आई नीड 4 लाख, 15 साल बाद आई नीड 8 लाख, 20 साल बाद आई नीड 16 लाख। सेम चीज, पर मेरा लाख रुपया, लाख है मेरा, आई हैव लाख रुपीज इन माई बैंक डिपॉजिट, और वो मुझे 2-3% के रेट से इंटरेस्ट रेट दे रहा है। सो एट द रेट ऑफ 2%, मुझे वो मेरा 20 साल में पैसा शायद 2 लाख हो जाएगा। 2% के रेट से आई विल बी ओनली एबल टू कंपाउंड इट, हाँ 1.5 लाख हो जाएगा। सेविंग में रेट पे मेरा 2% इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में होगा तो, हाँ, लेकिन 2% मिलता है, 1.5-2%, 1.5% मिलता है अगर बैंक में पड़ा है तो। लेकिन जब कैश है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 90% जो भारत की पब्लिक है वो अपना पैसा कैश में रखती है, मजदूर लोग हैं सारे, 70-80%, कुछ पैसा मेजोरिटी कैश में रखते हैं, तो उनको तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पहली बात तो, ठीक है। उनको कोई तो वो तो, बट जिसको ब्याज मिला भी, तो 1 लाख मेरा मैंने सेव किया था बैंक में, वो मेरा 1.5 लाख हो गया, चल 2 लाख हो गया, बट उसकी वैल्यू, लाइक, बट आई नीड 16 लाख टू बाई द सेम थिंग दैट आई वाज एबल टू बाई 20 ईयर्स अगो। सो वो जो वैल्यू है वो गई चुरा के ऊपर, किसको, जो जिसके पास क्रेडिट थी उसको मिली, और उसको मिली तो वो अपने हिसाब से चीजें लेगा, उसने चीजों की प्राइस बढ़ाई क्योंकि मनी ज्यादा आ गई, तो मेरी वैल्यू गई। तो 20, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी वैल्यू, मनी की वैल्यू ज्यादा होती। अगर वैल्यू, मनी सप्लाई फिक्स्ड ही होती, तो 20 साल में तो इकोनॉमी का कितना कुछ बढ़ गया होगा, डेवलपमेंट। तो हाँ, कुछ पहले ना भी 100 होता तो करोड़, फिर एटलीस्ट वैल्यू तो सेम रहती, राइट? 1 लाख हाँ, की अगर रहती है वैल्यू, अगर लेकिन सेम तो हाँ, रहती। अगर सेम डेवलपमेंट हो रहा है हर साल, कोई प्रोग्रेस हाँ नहीं है, सेम हाँ आईफोन भी सेम आईफोन ही हाँ फीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ सेम है, हाँ कोई हाँ प्रोडक्टिविटी हाँ गेन नहीं है, तो भी मेरी हाँ 20 साल बाद भी माई मनी वुड बी एबल टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, और सेम अमाउंट ऑफ फूड, और सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आई वाज एबल टू बाई 20 ईयर्स अगो। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट, तभी मार्केट में, मार्केट इज अ कॉम्पिटिशन, एंड बिजनेसमैन का काम ही है कि पैसा कमाना, और वो ग्रिड हम सब में फिक्स है, लाइक, हाँ इसके कारण ही ये चल रही है, क्योंकि वी हैव ग्रीड, हमें चाहिए, और हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हमें भूख लगती है, हमें, मतलब वो हमारे में इनबिल्ट है, हम हमें विस्तार करना है, लाइक दैट, वो हम फिलोसफी ये, तभी तो ये सब हो रहा है, लाइक वो अपना नेचर है, लाइक द ह्यूमन नेचर ही एक्सपेंड होना। अगर ये नेचर बंदरों में होता तो वो भी मिल्क मिलते हैं, लैंग्वेज डेवलप करते हाँ हैं, अगर गाय में होता तो गाय भी हाँ मिलती, डिफेंड करती खुद को, सब करती, पर वो हाँ नेचर उनमें नहीं है। हम्म अगर होता और फिर बराबर। बोले कि नहीं, दे डाइड, मतलब कि नेचर नहीं था, दे कांट सर्वाइव, दे कुडंट सर्वाइव, हम सर्वाइव हम्म कर पा रहे, मतलब दैट्स आवर नेचर टू एक्सपेंड है, हमें ज्यादा चाहिए, वी नीड हाँ मोर एंड मोर एंड मोर। तो हम्म, मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, फिलोसॉफी स्पिरिचुअलिटी नहीं जा रहे, बट हाँ मटेरियलिज्म की बात करें तो इंसान क्या करता है कि वी नीड मनी, फ्यूचर का राइट सिक्योर चाहिए, अपने बच्चों का सिक्योर चाहिए, अपनी अपनी आगे 10 पीढ़ी का सिक्योर चाहिए, बड़ा घर, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, तो दैट्स वाई बिजनेस इज रनिंग, मार्केट चल रहा है। सो और उसके लिए हर कोई ये ट्राई करेगा कि कम से कम दाम में मैं चीज आगे मार्केट को, कस्टमर को दे पाऊं, ताकि मैं ज्यादा सेल करूं और ज्यादा मेरे को पैसा बने। तो मेरे को कम में सेल करना है राइट तो मुझे अपना कॉस्ट घटाना पड़ेगा, और क्वालिटी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ही इंसान मेरे से लेगा। तो कॉस्ट घटाने के लिए आई नीड टू इन्वेस्ट इन R&D, तो प्रोडक्शन बढ़ना ही है,
समझ रहे हो, और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा तो क्वालिटी तो बढ़नी ही है। राइट, हाँ, मेक सेंस, लाइक हाँ। हाँ हाँ, पर कभी टाइम ऐसा हो सकता है कि रिसेशन का टाइम हो तो मार्केट या फिर में स्टैग्नेशन का टाइम ना, हो तो ना हो कुछ। हाँ, बट वो जो फंडा है स्टेगफ्लेशन का या रिसेशन का, वो भी ये फियाट वो ही लाता है। टेम्पररी है। हाँ, हाँ, और वो फियाट ही फियाट ही लाता है लाता और है। 2-2 साल तक ऐसा रहता है। ये जो फिक्स हाँ। मनी सप्लाई में ऐसा रहेगा कि वो वी विल नॉट हैव एनी बैड टाइम एज़ अ होल। किसी का खराब चल हम्म। रहा होगा, किसी का अच्छा चल रहा होगा, और किसी का खराब चल रहा होगा, किसी का अच्छा चल रहा होगा, तो मार्केट में द पीपल हैव सेविंग्स, तो वो एक दूसरे को लोन दे देंगे। क्योंकि हम्म। मार्केट इतना रेजिलिएंट हो जाएगा बिकॉज़ एवरीवन हैज सेविंग। उसके लिए काफ़ी-काफ़ी अच्छे-अच्छे हम्म। आर्टिकल्स हैं, लाइक यू कैन रीड पार्कर लुइस के आर्टिकल्स, और हम्म। पार्कर लुइस, एलन फेरिंगटन, सो हम्म। ध्रुव बंसल, जो भी अपने काफ़ी अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स हैं। सो हम्म। यू कैन रीड बिटकॉइन स्टैंडर्ड, यू कैन रीड ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स, ऑस्ट्रियन फिलॉसफी, सो लुडविग वॉन मिसेस, उसके हम्म। लेक्चर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पर कहने का मैं मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ते हैं, मेरी सेविंग गई, ठीक है? हम्म। सो मैं 20 साल बाद रिटायर नहीं हो पाऊँगा, 30 साल बाद हम्म। रिटायर नहीं हो पाऊँगा, सो आई नीड टू वर्क हार्ड हम्म। दैट। लेकिन ऐसा है कि 20 साल बाद मैं 50 साल का हो जाऊँगा, तो हम्म। मार्केट में न्यू जनरेशन भी आ गई होगी। हम्म। 30-40 साल के बाद अपनी ब्रेन काम करना भी कम होता है थोड़ा-सा। सो यू वोंट बी हाँ। एबल टू compete with the newer generation, हम्म। but newer generation is standing on the shoulder of older generation. हम्म। So older generation will not be able to earn more, बट हम्म। उन्होंने जो पहले काम किया है उसकी उसकी वैल्यू तो इतनी होल्ड होनी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर तो होता तो, अगर होती है तो लाइक दे विल बी इजीली एबल टू रिटायर। ऑल्सो बच्चों को भी हम्म। हेल्प कर सकते हैं फाइनेंस करने में, लेकिन वो नहीं है तो उनको भी काम करना पड़ता है, लोन हाँ। लेनी पड़ती है। उनके ही पैसे की वैल्यू ले चुरा ली, नाउ दे नीड हम्म। लोन टू बाय हाउस, टू बाय कार। और इससे हुआ भी हम्म। क्या कि हाउस की प्राइस भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मनी प्रिंटिंग हो रही है, तो वो सारी वैल्यू जाएगी कहाँ पे? जो फिक्स चीज है। जो सोना पहले 3,000 रुपए का 10 ग्राम था, 1 तोला सोना, आज वो 60,000 का तोला है। हम्म। तो इसका भी रेट 14-15% ही आ रहा है, गोल्ड का भी। समझ में हम्म। आया? मतलब जितना जिस रेट से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है भारत में, उसी रेट से सोना बढ़ा है। हम्म। मतलब कि सोना है, द वैल्यू ऑफ गोल्ड हैज रिमेन सेम। जो 10-20 साल पहले जो गोल्ड खरीद पा रहा था, जो चीजें हम्म। आज उससे थोड़ा ज्यादा खरीद पा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ी हम्म। है ना। हम्म। वो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वो मैं करती है, लाइक दे हेल्प टू बाई मोर, परचेसिंग पावर बढ़ाती है। हम्म। ठीक है। मेक सो सेंस, अब हाँ। नाउ देयर आर टू थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल बैंक्स। हम्म। जेफ बूथ बहुत अच्छे से बताते हैं, टेक्नोलॉजी का काम है हर चीज को सस्ता करना, राइट? हम्म। मार्केट फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मार्केट, कुछ भी कहो, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो हर चीज को सस्ता करती है एज अ मार्केट एज अ होल। हम्म। सो हमने एक फिक्स केस सोचा था मनी का। आई थिंक टुडे सेशन हम पूरा इन्फ्लेशन पे डेडिकेट करेंगे, बट ठीक ओके, फाइन। है ना। लाइक वी विल फाइन। नॉट कवर न्यूज एंड अब ऑलरेडी, बट ठीक है, लाइक इट इज अ हाँ, वेरी हाँ। गुड सेशन, और आई थिंक लोगों को हेल्प कर सकता है। यहाँ तक जो देख रहे हो उसके लिए खूब खूब थैंक यू, और आपके लिए अच्छा है, लाइक मेन चीज़ कि आप इन्फ्लेशन समझो, ठीक है। राइट। सो लाइक कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब फिक्स है मार्केट में मनी, और हर साल हम्म। मानते हैं कि नए नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं जॉब में, और जितने लोग एंटर कर रहे हैं हम्म। उससे कम लोग मार्केट से निकल रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लाइक वी आर हम्म। ग्रोइंग, ह्यूमैनिटी इज ग्रोइंग, ठीक है। राइट। और सस्टेनेबल ग्रोइंग हो रही है। एक हद पे कभी हम्म। कभी ऐसा भी होगा कि हमें वो पॉइंट पता नहीं है, मैं नेचर कभी नेचर मारता भी है और वो भी करता है, वो नेचर का काम है, बट लेट्स एज्यूम कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इवन पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही, लेकिन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वी आर गेटिंग न्यू थिंग्स एवरी ईयर, न्यू मोबाइल, न्यू गैजेट्स, न्यू टीवी, न्यू टाइप ऑफ बाइक, कार, है ना, नई चीज आ रही है। सो पहले 100 करोड़ इसी चीज को नाप रहा था, अब 100 करोड़ डबल चीज को नापेगा कुछ साल बाद। सो हम्म। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा इफ आई अर्न सेम। और अगर मैं थोड़ा भी, अगर मेरी सैलरी कम भी होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उससे ज्यादा इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो भी मेरा राइट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ। और मेरी, या तो फिर मैं कहूँ कि सेम स्टैंडर्ड लिविंग में रखा तो आई विल बी एबल टू सेव मोर,
और वो मैंने सेव किया तो 5 साल बाद तो मुझे और वैल्यू मिली, क्योंकि वो सारी वैल्यू उसी 100 करोड़ में ही तो फिट हो रही है। हम्म अब ये इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है अगर किसी को, तो इससे भी सबसे हर बार मैं सेम एग्जांपल देता हूँ, ये सब साइड में रख दो। नाउ थिंक अबाउट द इन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं हर बार। लेट्स थिंक अबाउट द टेस्ला। टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला इज प्रोड्यूसिंग, टेस्ला कंपनी स्टार्ट हुई है, राइट, इलेक्ट्रिक गाड़ी हम्म प्रोड्यूस कर रही है। पहला साल है, हम्म कंपनी में 100 लोग हैं, फाउंडर, सबके पास 1% शेयर है, और हम्म 100 कार प्रोड्यूस करी है हमने एक साल में, और वी आर एबल टू जनरेट सम प्रॉफिट्स। सो हम्म सबके पास एक एक शेयर है, 1% शेयर है, 100 शेयर, हम्म 1% राइट। हम्म, सो 100 हाँ हाँ कार प्रोड्यूस करी। सो हाँ लाइक तेरे पास एक शेयर है, मेरे पास एक शेयर है, तो जो भी शेयर होल्डर है उनका, दे आर लाइक दे कैन गेट 1% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द टेस्ला, क्योंकि उनके पास 1% शेयर है, ठीक है। तो उसके लिए वो 100 कार जब थी, उसके लिए दे नीड सम फैक्ट्री। 100 कार के लिए छोटी सी फैक्ट्री थी, ठीक है, हम्म छोटी सी फैक्ट्री थी, 100 कार बन रही थी, और ये चल रहा है, ठीक है, 10 साल हो गए। अब हम्म नाउ टेस्ला इज एबल टू प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ 100, 1 लाख कार। नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 1 लाख कार, बिकॉज प्रॉफिट आया, वो हमने इन्वेस्ट किया, वी बॉट मोर लैंड्स, वी बिल्ड मोर फैक्ट्री, ठीक है, हम्म, हाँ हायर, नए लोग को हायर किया। सो अब 10 साल हम्म बाद, और ये होगा ही, लाइक इफ वी आर एबल टू ग्रो, इफ यू आर एबल टू मैनेज, इफ यू आर एबल टू ग्रो, तो हम्म लेट्स एज्यूम कि हम ग्रो कर पा रहे हैं और वी आर प्रोड्यूसिंग 1 लाख कार। हम्म सो नाउ यू होल्ड 1% शेयर, तो अब तेरे पास लाइक कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी गाड़ी का, 1000, राइट, हाँ हम्म 1000 कार का प्रॉफिट तेरे पास रहेगा। हाँ सो अगर तूने वो एक शेयर 10 साल पहले रख लिया, बेचा नहीं तूने, तो 10 साल बाद दैट हम्म 1% ऑफ द शेयर इज गिविंग यू 10%, लाइक सॉरी, द प्रॉफिट ऑफ 1000 कार। हाँ एंड अगर इस टाइम पे तो अगर शेयर वो बेचता भी है, तो तुझे वो प्रॉफिट तो हर साल तेरे शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यार, हाँ वो अभी हम रुपए में नाप रहे हैं, पर उसको तू एसेट में नाप, कि वो 1% शेयर will be able to buy you the 1% of the factory, 1% of the company। तो हम्म तेरे पास 1000 कार जो प्रोड्यूस कर पाए, उतनी फैक्ट्री की लैंड, फैक्ट्री वो सब तेरी है। हम्म तो वो 1% वैल्यू, परचेजिंग पावर बढ़ी शेयर की। हाँ अब ये समझ कि टेस्ला की इकोनॉमी में द शेयर इज द मनी, बिकॉज सबका 1% शेयर था, हाँ और वो उनका, ग्रेट एनालॉजी हाँ हाँ, है ना, थैंक यू। मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, पर इसमें मैं आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन इजीली। सो वो जो 100 लोग ने 1% शेयर लिया था ना, हाँ वो लिया नहीं था, मतलब दे ऑल आर गिविंग देयर सेम इनपुट टू द कंपनी। दैट्स व्हाई हम्म एवरीवन इज एग्री कि चलो ठीक है, 1% दे रहा, 1% दे रहा, 1% मेरा, हम्म है ना। अगर कोई हाँ कम काम कर रहा है, तो लाइक उसका शेयर है, शेयर तो वो उसको निकाल नहीं सकते, लाइक वो होल्ड करेगा जब तक शेयर, तब हाँ तो प्रॉफिट मिलेगा ही, बट हाँ उसका हाँ उसका से नहीं रहेगा, लाइक मोनोपोल मेजोरिटी नहीं रहेगी। उसे पर कहने सस्टेन का मतलब, करना पड़ेगा ना, लेकिन अपने आप को उसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर अर्ली स्टेज में तो ज्यादा कार्स बेचेंगे नहीं। वो बंदा ज्यादा काम कर भी नहीं रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर उसे अपने आप को किसी तरीके से सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर वो अपना शेयर थोड़ा तो बेचेगा, राइट। हाँ ठीक है, वो थोड़ा बेच रहा है, लाइक थोड़ा थोड़ा बेच रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा वो सा तो बेच रहा बेचना है, ही पड़ेगा उसे। वो बेच रहा है, थोड़ा थोड़ा बेच रहा है, बट कहने का मतलब है कि वो जितना बेच रहा है उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है, हाँ वैल्यू, ये भी उसकी पॉइंट वैल्यू है ग्रो हाँ। हो रही है। ये है मतलब, दैट्स, ये अपन समझते हैं कि वो ग्रो हो रही है ओवरऑल, कि उसको, हाँ या फिर, पर वो डिपेंड करता है कि वो कितना बेच के अपना कितना स्टैंडर्ड लिविंग कैसा रख रहा है। अगर वो जितना हम्म, ग्रो हो रहा है वो सारा बेच रहा है, लाइक, तो हम्म, वो बड़े बड़े घर खरीदेगा, बड़े बड़े बंगलो खरीदेगा, और पर हम्म, ये है कि अगर वो सेविंग करेगा, कम हम्म, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह लेगा, तो उसको बाद में अच्छा मिलेगा,
राइट, बाद में अच्छा मिलेगा, उसको पता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है तो 10 साल बाद मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो वो अपना ग्रो करेगा। तो वो नहीं बेचेगा तो अब इसमें हम मनी में नहीं जा रहे, पर ये कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे। कहने का मतलब है कि मनी ग्रो, टेस्ला ग्रो करी तो आफ्टर 10 ईयर्स उसके पास 1% ऑफ फैक्ट्री का पावर है, लैंड वैंड का जो है वो उसका है। तो अब ये टेस्ला की इकोनॉमी में टेस्ला शेयर, वो उसका शेयर, व्हाट इज शेयर? शेयर इज द हिस्सा। हिस्सा क्या होता है? तो अब इकोनॉमी में बात करें, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो हर एक सिटीजन काम करता है इकोनॉमी में, जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो वो अपना अपना हिस्सा ही दे रहा है इकोनॉमी में, अपना शेयर दे रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो वो कंज्यूम कर रहा है, बट वो अगर इनपुट दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोसाइटी में। अगर मैं कोई जॉब बिजनेस में काम करूंगा, मैं कोई फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो स्टील बनाया वो आगे जाके, मैंने जो स्टील को वेल्डिंग किया वो आगे जा रहा है इकोनॉमी में, वो वैल्यू हर इकोनॉमी में नीचे मजदूर से लेके ऊपर जो भी बिजनेसमैन है, हर कोई काम कर रहा है और हर कोई अपना इनपुट दे रहा है। जिसकी इनपुट की जितनी ज्यादा वैल्यू, उसका उसको रिवॉर्ड मिलेगा इन मनी। जिस फॉर्म में मिलता है वो मनी का। राइट। ठीक है, तो अब ये है कि अब ये हम किसको मनी ले रहे हैं? अगर हम गोल्ड को लेते हैं, हमें पता है कि गोल्ड अच्छी बात है, चलो गोल्ड डिविजिबल है इस कारण से, बट ये है कि लोग, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो उस गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ी तो गोल्ड के जो माइनर्स है वो जमीन से और गोल्ड निकाल लेंगे, मान के निकल रहा है, निकल ही रहा है एक्चुअली, वो कब 2-3% सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो गोल्ड की वैल्यू और बढ़ेगी, गोल्ड की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो लोग और इन्वेस्ट करेंगे कि कैसे हम ज्यादा गोल्ड निकालें, कहीं ना कहीं गोल्ड निकालें, केमिकल से बना दें। ठीक है, बट तो भी लास्ट 100 ईयर से गोल्ड का इन्फ्लेशन रेट 2 and 3% के बीच में रहा है, उससे ज्यादा वो गोल्ड नहीं निकल पा रहे। बट फिर भी मार्केट में नया गोल्ड ही एड हो रहा है हर बार, हर साल मार्केट में। लाइक देयर इज, एज लॉन्ग एज देयर इज इन्फ्लेशन, 2% इन्फ्लेशन है, मतलब कि 100 टन का 2% इन्फ्लेशन 2 टन हुआ। तो अब नेक्स्ट ईयर 102 टन हो गया मार्केट में सोना, फिर 2%, अब फिर और 2% इन्फ्लेशन, तो 102, 102 का 2%, so now it is more than 2%। सो अगर 2% इन्फ्लेशन है तो हर साल, तो 50 साल में 200 टन नहीं होगा, लाइक लेस देन 30-35 ईयर्स में ही 200 टन हो जाएगा गोल्ड मार्केट में, बिकॉज वंस इट रिच 150 टन, तो 150 टन का 2% इज 1.5, कितना हो गया, 3 टन। So you will reach at 2% inflation, you will reach like you will increase the, you will double the gold supply in less than 50 years, like 30-35 years। फिर भी मतलब नया गोल्ड मार्केट में ऐड हो रहा है, तभी भी मतलब मेरी वैल्यू 2% के रेट से तो डी वैल्यू हो ही रही है, फिर भी हो रही है, पर इकोनॉमी उससे ज्यादा ग्रो कर रही है, तो गोल्ड इज एबल टू स्टोर माई मनी। ठीक है, सो अब हम ये सब इन्फ्लेशन समझ में आया, 15% से रेट से है। अब इन्फ्लेशन एक्चुअली मनी का बढ़ना है, प्राइस का बढ़ना नहीं है, मनी सप्लाई का बढ़ना है। पर अब हम आते हैं, हम लास्ट में ही आ चुके हैं डिस्कशन पे कि अब क्यों इतनी पावर आती है, पर हम इन्फ्लेशन समझ रहे हैं कि अब गवर्नमेंट अपनी टारगेट रखती है, भारत सरकार 4% इन्फ्लेशन का, +or-2, कि हम इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन कहते हैं चीजों की महंगाई को, कि ये चीज जो इंसान खर्च करता है उसकी प्राइस हम 4% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, साल ब साल हम बढ़ने नहीं देंगे। पहली बात कि अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो बढ़ती ही नहीं। अगर वो मनी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, जो हम बैंक में स्टोर कर रहे हैं, वो बैंक, अगर बैंक में पैसा पड़ा है तो कैसे बढ़ती प्राइस, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, तो बढ़ती ही नहीं पहली बात। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हम 4% इन्फ्लेशन रखेंगे, तो अब इससे ये होगा कि अब, लेकिन इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, वी हैव मोर एग्रीकल्चर, फार्मिंग है, नई नई डेवलपमेंट, पेस्टिसाइड वगैरह आ रहे हैं कि हम ज्यादा सब कुछ उगा पा रहे हैं। सो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मान के 5% रेट से ग्रो करी, कि इसका मतलब कि मेरा प्राइस है वो 5% कम हो रहा है हर चीज का। इकोनॉमी ग्रो होने का मतलब है कि मेरी सारी जो जीवन निर्वाह की मेरी चीजें थी लास्ट ईयर, उस चीजों में 5% प्रोडक्टिविटी आई है, प्रोडक्टिविटी गेन्स आया है, वो चीज में जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे ट्रांसपोर्ट से लेके ऑयल है वो, मतलब मेरे इंजन है वो पावरफुल हुआ है 5% गाड़ी का, मेरे वेजिटेबल्स है वो 5% और उगी है, जितनी डिमांड है उसको, तो मतलब 5% प्राइस डाउन आएगी।
तो इकोनॉमी अब 5% प्राइस डाउन आती है, हर चीज की प्राइस तो कम होती है। टीवी हाँ, कितने महंगे थे कितने सस्ते हो गए अब, फोन कितने हम्म, महंगे थे कितने सस्ते हो, हर चीज प्राइस डाउन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया प्रोडक्टिविटी, मार्केट का काम है हर चीज को प्राइस को गिराना। हाँ, ठीक है, तो अब माने कि 5% इकोनॉमी ग्रो हुई, इसका मतलब कि 5% प्राइस कम हुई, तो अब वो लोग टारगेट रख रहे हैं 4% इन्फ्लेशन का, कि अब हम बोल राइट, देंगे कि हम तुम्हारा प्राइस 4% ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। पर अगर वो कुछ करते नहीं, तो मेरी जो 100 रुपए की चीज थी वो 95 की होती। हम्म, लेकिन वो बोल रहे कि इसकी प्राइस हम 104 से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। सो हम्म, टू डू दैट, 95 और 104 कितना हुआ? yeah, 104, मैं बताता हूँ, 9%, 9.5%। हाँ, सो अगर 5%, अगर वो 9.5% मनी सप्लाई बढ़ाते हैं हाँ, और प्राइस 4% ही बढ़ती है हर चीज की, हाँ, दैट मीन्स तो कि 3%, 5% इकोनॉमी ग्रो करी है। हाँ, और वो जो चीज सस्ती होती, हम्म, जो फायदा मार्केट में सबको मिलता, हम्म, वो उन्होंने प्रोडक्टिविटी का जो गेन है वो उन्होंने चुरा लिया। वो गेन हम्म, उनके पास, जो इंस्टेड ऑफ पेइंग 95 आई एम पेइंग 104, सो आई एम पेइंग 9 रुपीज मोर। हम्म, सो मेरा 9 रुपीज भी एक्स्ट्रा गया इस साल, हम्म, प्लस मेरी जो सेविंग थी वो भी उन्होंने 9% के रेट से डिवेल्यू कर दी, क्योंकि उन्होंने हम्म, 9.5% से बढ़ाया। वो भी सेविंग हम्म, भी डिवेल्यू करी साथ साथ, और मेरे मेरे को खर्चा भी ज्यादा आ रहा है अब, आई एम पेइंग 9% मोर। हम्म, सो अगर मेरी सैलरी 9% भी बढ़ती है, तो भी मेरी सेविंग्स तो डिवेल्यू हुई है, बट मेरी हम्म, सैलरी 9% बढ़ गई। तो मतलब ठीक है, लाइक मैं 95 की जगह 105 104 पे कर रहा हूँ, और उतना मुझे पैसा मिल रहा है। हम्म, तो ये जो सारी बैंकिंग का सिस्टम है, वो सारा मनी को, मनी मैनेजमेंट बैंक से, ये सारा वो सिस्टम है कि कैसे हम पैसे को सर्कुलेट करके हम्म, इकोनॉमी चलाए। पर कहीं ना कहीं सरकार को पता ही होगा कि ये जो करने से उनकी मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने से हमारे मनी की वैल्यू कम होती है, तो हमारे सेविंग्स कम होता है। सो हम आगे का प्लान नहीं कर सकते, हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जब खराब टाइम आता है तो हमें पास, हमारा 20 साल बाद अगर बीमारी आई, बुढ़ापे में बीमारी आती है, सेविंग खत्म हो गई। हम्म, ठीक है, तो right, मैं, आई नीड टू टेक लोन, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में भी सबकी सेविंग खत्म हो चुकी है। हम्म, जब ऐसा नहीं होता तो कम्युनिटी में हर, मेरे पास अगर बड़ी सी बीमारी आ गई तो भी ये अगर फिक्स सप्लाई है, तो हर किसी के पास सेविंग है, समझो, छोटी छोटी। हम्म, हर एवरीवन इज रेजिलियंट टू फाइट द एनी एब्रप्ट बिहेवियर फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम द मार्केट, right, जब सेविंग है। right, लेकिन सेविंग नहीं है तो किसी के पास सेविंग नहीं है, कौन हेल्प करेगा? हम्म, 90% पब्लिक की बात कर रहे हो, और जिसको पता है, इसमें जो पॉलिटिशियन को पता है, कंपनीज को पता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मनी है वो बैंक में नहीं रखते हैं, दे बाई लैंड्स, दे इन्वेस्ट इन हम्म, स्टॉक मार्केट्स। हम्म, जमीन ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, स्टॉक मार्केट पर जो मजदूर है, वो जो रोज का 500 रुपए मजदूरी कमा रहा है, 200 रुपए उसका खर्चा है, 300 खर्चा है, 200 रुपए बच रहा है, वो 200 रुपए में कहाँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करेगा? और उसको पता भी तो नहीं है ना। आज इंडिया में सिर्फ 1% लोग right, ही इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। पहले तो हम्म, अकाउंट बनाना वो ही नहीं पता, मुश्किल से आज आराम आराम से बनता है फोन आने के बाद। पर वो हम्म, जैसे ही मार्केट में आएगा तो फिर वो ट्रेडिंग सोचेगा कि यार देखो ये 20% भाग गया, 30% भाग गया। सो ट्रेडिंग मार्केट पूरा स्टॉक मार्केट बना, मनी हम्म, इनका मैनिपुलेशन हुआ, तो यू नीड टू इन्वेस्ट। तो पहले तो तुमने हम्म, पैसा कमाया, अब तुम फिर से उसको सेव करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो रिस्क लेना पड़ रहा है। तो हम्म, आर्टिफिशियल कंपनीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम्म, लोन की जरूरत पड़ी। तो इस, अगर लोन जरूरत नहीं पड़ती तो सोसाइटी रेजिलियंट होती। इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी, वो नहीं पड़ती, सोसाइटी रेजिलियंट होती। ये तो वो बात हो गई। अब गवर्नमेंट की बात आती है, अब लास्ट में आता है कि फॉरेस्ट फायर एंड ये, इससे क्या होता है अब? right, अब इसमें बात है कि ये क्यों, अब ये करने से क्या हुआ कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हमने लाख रुपए हमारा डिपॉजिट किया, लेकिन उसमें से 95% पैसा उसको कहाँ डालना है, दैट पावर बैंक के पास है। हाँ, और वो सेंट्रलाइज बैंक चलती है सरकार के हिसाब से, तो सरकार बता पाएगी किसको लोन देनी है। कोई बिग हम्म, बिग कैपिटलिस्ट को, अगर तू भी कुछ बड़ा अपना बन जाएगा, अपन कुछ ऐसे बड़े बिजनेस कर दिए, हम्म, सो लाइक हम पॉलिटिक्स में कनेक्शन में आएंगे, सो सारे टेंडर हमें मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे टेंडर पास कर रही है। उनके पास इतनी पावर कैसे हाँ, आई टेंडर पास करने की? बिकॉज उन्होंने मनी प्रिंटिंग अपने पास रख लिया है। मनी से हम्म, वो क्या कर पा रहे थे, उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि वो हम्म,
न्यूज़ मीडिया को लाइक आप हम न्यूज़ मीडिया को खरीद सकते हैं कि भाई हम मास प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सो हम नैरेटिव चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट में, और हम रियल चीज़ नहीं बता सकते कि क्यों हुआ। फिर ये टाइम के साथ इन्फ्लुएंस इतना आ चुका है अभी कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है कॉलेजेस में, कि कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स में कि क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ, फिर हर एक टेंडर में अब इतनी पावर आ गई, और लोग विरोध नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि लोगों को खाने पीने के वांदे है। क्यों वांदे है? क्योंकि तुमने उसकी मनी प्रिंटिंग से उसकी वैल्यू चुरा दी है सारी। तो ये पूरा लाइक अगर ये और डिटेल में जानना है तो 2 बुक है सैफुद्दीन एमोस की, एक तो फियाट स्टैंडर्ड है, और जिमी सॉन्ग की बुक है फियाट रूइंस एवरीथिंग, राइट। और एक सेब बनी की बुक है हिडन कॉस्ट ऑफ मनी, हिडन कॉस्ट ऑफ मनी समथिंग, या हिडन कॉस्ट ऑफ मनी। राइट। तो ओके। ये मतलब अब तुझे तू अब एथिकली समझ कि तेरे पास पैसा है, मैंने वो चुरा लिया, लिटरली समझ के तेरे पास 1 kg गोल्ड है, मैंने 950 ग्राम तेरे से चुरा लिया, और तेरे को वहां पर मैंने सोने का पत्थर रख दिया, पीला पत्थर रख दिया, और तुझे लग रहा है गोल्ड है वो। अब मेरे पास जो 950 ग्राम गोल्ड है वो मैं आगे लोगों को लोन दे रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ आगे से, फिर 95% हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हमने चीज़ की प्राइस भी बढ़ा दी, और जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू भी कम कर दी पीछे। तो अब लोग विरोध करें कब? लोग लोग अपने बच्चों को पढ़ाए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पेट, भूख। अगर इंसान खाने की इंसान को तंगी नहीं है तो इंसान आगे सबसे पहले एजुकेशन में जाएगा, और फिर एजुकेशन सीखेगा, उसके बाद वो कुछ देगा, सोसाइटी को देगा। लेकिन 90% पब्लिक को तुम लोगों ने इतना सप्रेस कर दिया है कि वो खाने से ही बाहर नहीं आ रहे, तो वो बस मजदूरी कर रहे हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो रिच, उनके पास एसेट है, वो उनके पास बैंक डिपॉजिट नहीं है, उनके पास एसेट है, उनके पास एक तो खुद की कंपनी है, बाकी पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन ले लेते हैं, तो जमीन फिक्स्ड है, सोना फिक्स्ड है, तो उनकी की वैल्यू बढ़ती है, तो वो और रिच हो जाते हैं। उन्होंने क्योंकि वो बढ़ रहा है उनकी कीमत, तो रिच और रिच हुए, पुअर और पुअर हुए, तो सोसाइटी में गैप बढ़ेगा, तो रिच और दबाएगा पुअर को, और पुअर को और मार्केट में अब ऐसा हो गया कि मतलब लोग ज्यादा होने से ऐसा हो गया कि लोग अपने खाने पीने के लिए कम सैलरी में काम कर लेंगे, कम में ही काम कर लेंगे, और रिच इतने रिच है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तू बोलेगा कि मैं नहीं इतने में काम करूंगा, तो उसको पता है कि दूसरा मिल ही जाना है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो वेट कर सकती है, उसके पास पैसा है। तो हम मानते हैं कि चलो वो लोगों ने तो ऐसा हो रहा है कि सिस्टम पूरा अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है आज। कैसे? कि तुम गवर्नमेंट के नजदीक में हो तो तुम्हें ज्यादा लोन मिलेगी, ठीक है। एजुकेशन है तो चलो तुम बच सकते हो, लाइक एजुकेशन है तो तुम्हें पता है तो भी तुम स्टॉक मार्केट में सब इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा एक्चुअली बचा आई सकते थिंक ये तो लाइक हमेशा से ही ऐसा सिस्टम रहा है दुनिया में। हो। 50 साल से हुआ है सिर्फ, ये सिर्फ 50 साल से हुआ है, पहले नहीं हुआ। और जब हुआ है पहले, जब पहले हुआ है सब 15th रिवोल्ट्स हुए सेंचुरी हैं। 14th सेंचुरी में, जब छोटे छोटे में हुआ है, तो वो वो रोमन एम्पायर में, बाइजेंटाइन एम्पायर ऐसे कलेप्स हुआ था, ऐसे काफी एंटायर कलेप्स, मतलब वो कलेप्स हुए हैं, और बाकी के राजा ने उसको छीन लिया है। भारत में जब अंग्रेज आए तब भारत में सिल्वर स्टैंडर्ड चलता था, हम गोल्ड पे इतना फोकस नहीं करते थे, हमें सिल्वर का लोगों को भूत चढ़ा था। तो ब्रिटिशर लोग सिल्वर ला ला के इंडिया की एसेट में खरीद पाए। ये हुआ, ये लिटरली हुआ है। 1814 1820 की बात है, उस टाइम पे भारत सिल्वर स्टैंडर्ड पे था, मतलब सिल्वर भारत में वो थी, गोल्ड नहीं थी। भारत में सिल्वर वैल्यूएबल लगा था भारतीयों को, इंडियंस को, ये हिस्ट्री में है, बिटकॉइन स्टैंडर्ड में भी सैफुद्दीन ने अच्छे से बताया है। सो पर मतलब इतना मास लेवल पे पहली बार हुआ है पिछले, और ये इनेबल हुआ 1971 से, और उस टाइम पे लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कि लोगों ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस इतनी पावरफुल हो गई, सब कुछ इतना पावरफुल हो गया कि वो विरोध नहीं कर पाए। और अब ये अपना कंट्रोल, उनको भी मजा, वो भी इतने हो चुके हैं कि लाइक उनको भी इतना इजीली मिल रहा है, तो वो भी अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहेंगे। पहली बात तो वो नहीं छोड़ना चाहेंगे,
लेकिन एक हद तक लोगों को दबा नहीं पाएंगे। और जब बिटकॉइन जब अपने सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया तो उसमें लिखा भी था कि चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सेकंड बेल आउट, मतलब कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी बैंक को, मतलब कि अगर अनएथिकल बिहेवियर उसने बताया, मतलब बिटकॉइन माइन करके उसने ये बोला कि देखो यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। पर कीपिंग दैट असाइड, कहने का मतलब ये है कि वो इनकी इतनी पावर आ गई है कि वो, अगर देख, मुझे लोगों में कंट्रोल, लोगों में मेरी बात फैलानी है, उल्लू बनाना है, तो मुझे लोगों को बातें कर, लोगों को कुछ, मैं अगर 100 लोग मेरी सुने तो मैं उसको मैनिपुलेट कर दूंगा कैसे भी। 100 में से 10 लोग 50 लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे और फिर मैं अपना कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो उनको सुनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, वो क्या करते हैं, फोन चलाते हैं, घर पे टीवी है, ठीक है, फ्री में इंटरनेट दो। कैसे दे पाएंगे इंटरनेट, बिकॉज हालांकि अंबानी, नहीं कहना, मैं नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर कहने का मतलब कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, हर कोई यही करता है। अगर मैं बोलता कि मुझे तू पीएम है और मैं हूँ, तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो भाई, गिव मी सम लोन दे दी और मैं फ्री में इंटरनेट दूंगा। फिर मीडिया चैनल खरीद लेंगे हम, मैं बोलूँगा मीडिया चैनल खरीद लो, मुझे मीडिया चैनल खरीदनी है। लोग विरोध करते हैं पर उतना दबाया जाता है, लोग इतना विरोध कर नहीं सकते। अब टाइम का भी खेल है, समय का भी खेल है कि समय इतना पावरफुल है कि समय भी ऐसा है कि अधर्म के साथ समय है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। लेकिन लाइक अनराइटफुल चीज़ के साथ टाइम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि राइटफुल टाइम आ रहा है विद बिटकॉइन, राइटफुल टाइम आ रहा है, बट अब टाइम लगेगा, 20 30 40 50 साल लग सकते हैं एटलीस्ट, और फेल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि टोटल डिस्टोपियन हो जाए और उसके बाद फिर कुछ, मतलब, और ये लोग कि ये सिस्टम भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा चला तो ये अपने आप भी कलेप्स होनी है, ये अपने खुद के ही तले कलेप्स हो जाएगी, गेम थ्योरी के हिसाब से खुद ही कलेप्स हो जाएगी। बिकॉज इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने लूटा लूटा लूटा, तो रिच हो गए, पुअर पुअर हो गए। कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जरूरत पड़ी ना तुम्हें, वरना बिटकॉइन जरूरत क्यों पड़ती भाई। ये सेम चीज गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। गवर्नमेंट बोले कि हम, हमारा रिजर्व 100% बैंक रिजर्व है सारी, गवर्नमेंट का कोई ऐसी एथिकल बिहेवियर हो गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट बोले कि हमारा एथिकल 100% रिजर्व है भाई, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, कोई कभी आर्टिफिशियल मनी प्रिंटिंग नहीं होगी, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसे कर सकते है, लेकिन लोगों में करप्शन आया, लोगों ने देखा कि भाई करप्शन हो सकता है, मस्त लूटो लूटो, तो बिटकॉइन की जरूरत पड़ी, तो बिटकॉइन आया तो जो लोग फ्रीडम फाइटर है वो लोग फाइट कर पाएंगे गवर्नमेंट से, देखते हैं कितना कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि इंसान इंसान का नेचर है हैप्पीनेस, इंसान मरना पसंद करेगा पर दबेगा नहीं ज्यादा, एक हद से ज्यादा नहीं इंसान दबता, मर जाता है। और ये हमने पिछले हिस्ट्री में देखो तो प्रोटेस्ट से भरी हुई है, सिविल वॉर से देखो, इंडिया का प्रोटेस्ट देखो, इंसान एक हद तक सहन करता है। तो ये लोग जब तक इतना दबा है कि भाई लोग रिवोल्ट ना करें, तब तक ये सिस्टम चलेगा। पर ये सिस्टम में ऐसा है कि उनको जितना अपना मेंटेन करना है, उसके लिए उनको और दबाते रहना पड़ेगा। हाँ, उनको केवाईसी और करना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि लोग बिटकॉइन बाय करने लग गए, तो उनको एक्सचेंज बंद करना पड़ेगा, सीबीडीसी लाएंगे कि भाई तुम्हारा नए नए टैक्स अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। सो फियाट से इनको पावर मिलती है क्योंकि वो लोन इजीली दे सकते हैं खुद को, तो फिर उसके बाद वो नैरेटिव भी फैला सकते हैं सोशल मीडिया में, तुम्हारा माइंड में कर सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, कोई सही आवाज को बोलने नहीं देंगे, जो विरोध कर रहा है उसको बोलने नहीं देंगे। यूट्यूब भी अपने करता है, बिटकॉइन के वीडियो उसको शैडो बैन करता है, तुमने कुछ हाँ, तो फिर काफी ऐसी चीज ट्राई करेगा कि लोग डरे। जैसे कोविड में देखो, लोगों को डरा दिया, वैक्सीन पकड़ पकड़ के वैक्सीन दे दी, इतनी पावर आई कि लोग कुछ बोले नहीं, लोग पूरा दुनिया जेल हाउस अरेस्ट हुआ, इस लेवल तक का मास साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है, देखो, है ना। तो ये समय मेरे ख्याल से ये सब टाइम का खेल है। और लाइक कौन, मतलब उन्होंने जो भी जो भी लोग हैं उनको ऐसा मन किया ना करने का, और सामने कोई नहीं फाइट कर पाया, है ना, जो हुआ वो तुम कैसे बदल सकते हो, मतलब कि ये टाइम में ही हुआ, तो हुआ ये। बट ये है कि अब इसके कंसिक्वेंसेस है वो ऐसा है कि लाइक उनकी हार इनएविटेबल है, बिकॉज लाइक ट्रूथ प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है, क्योंकि वही नेचर है, ह्यूमन का नेचर है। हमारा नेचर प्यार है, हमारा नेचर फाइट नहीं है ना, नेचर प्यार है। सो ये फॉरेस्ट में है कि लाइक यस दे हैव पावर, तो वो तो कर लेंगे, कोई बोलेंगे नहीं। हाँ, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग बहुत अलग अलग है, मतलब लाइक तू विरोध कर रहा है बट तेरे पास
उससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है खुद की। खुद की करियर की पावर प्रॉब्लम है, खुद कुछ मीनिंगफुल हाँ, करने पावर की। नहीं। हुँ। तो ऐसा है कि पावर बहुत सेंट्रलाइज बात आ गई फिर से कि पावर कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो फियर सिस्टम है ना, जब तुम अनएथिकल चीजें करते हो इसमें, तो वो पावर सेंट्रलाइज होता है एक जगह से। पावर जितना सेंट्रलाइज रहता है उतना उसको अपने शास्त्रों में भी लिखा है सनातन धर्म में कि पावर का नियम ऐसा है कि वो जितना एक जगह पे रहा ना, उतना उसको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा। लाइक यू नीड, लाइक फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रीडम एक तरह की पावर है, तो रिस्पॉन्सिबल उनको होना पड़ेगा उनको। और हमने एक बार वो भी बात करी थी कि लाइक तेरे डिसीजन तू खुद ही ले तो अच्छी बात है, मुझे नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि तुझे क्या करना है, बिकॉज यू नो कि तुझे तेरे लिए क्या ठीक है। तो अभी भारत देश में सेंटर में बैठे बैठे 500 लोग डिसाइड करें कि भाई गुजरात में अहमदाबाद में ये रोड बनाते हैं ये बजट में, उनको नहीं पता, वो तो ऐसे बोलेंगे हाँ भाई चलो बना देते हैं, यहाँ पे लोग खुश हो जाएंगे। पर अगर वो पैसा तुमने नीचे ही दे दिया होता सारा बजट, तो वो अपने हिसाब से वो बना देते, उनको जो बनाना है वहाँ के लोकल लोग बना देते। आई थिंक इस टाइप की चीज लाइक ये थोड़ी सी वैसी है, थोड़ी सी न्यूआंस्ड है, बिकॉज व्हेन यू कंसिडर कि इंडिया में जो 500 लोग बैठे हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एंड अगर चाइना में ही ऐसे लाइक 500 लोगों की डिक्टेटरशिप है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, डिफरेंस क्या है कॉम्पिटेंस में, क्या क्या काम कर रखा है उस टाइप का, then that just worsens the situation even more. Because let me be honest, if I was being led by people like Putin, Vladimir Putin, sure, that's great. But I No, have two options to vote like this year, sir. I have two why options. do you want to be ruled by someone? I'm not saying ruled, I'm saying governed. I think there's a difference. I want to be Right. governed Why do you want to because go, like why do you want to give your decision of your like local bodies to one person? Like why don't you that's make it just decentralized? because I mean that's just a thing, right? I support decentralization, and that's what Putin will do. He will make the decisions on his own, but he's not an idiot. He will definitely consult more people about the decisions. He just consult me about Right. Solan's decisions, Right. right? Like किसी के भी साथ कंसल्ट कर ले, लाइक हाँ यू किसी विल नॉट कोई तो गेट, हाँ किसी के साथ कंसल्ट कर ले, वो कितना भी लाइक वो सेंसर बिठा दे नीचे, बट हम्म, उसको नहीं पता कि इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है। सो फर्स्ट थिंग कि तुम पहले तो मनी प्रिंटिंग स्टॉप करो, ताकि हाँ, उन लोगों के पास, लोग पावरफुल है अपने आप, जो मनी है वो हम्म, पावर है। टाइम के हम्म, साथ जो इकोनॉमी में, प्रोडक्ट सोसाइटी में जो ग्रो होगा, जो वैल्यू बढ़ेगी, वो मनी में ही तो हम्म, रिफ्लेक्ट होगी, जैसे शेयर में होता था। जैसे हम्म, टेस्ला ग्रो करी तो टेस्ला के शेयर की वैल्यू बढ़ी। तो इस हम्म, तरह मनी वैल्यू, इकोनॉमी बढ़ेगी तो मनी ग्रो करेगी। सो जो भी मनी होल्डर है वो पावरफुल होंगे। सो आपने पावर को ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज कर दिया। इससे क्या होगा कि अब हाँ, वो लोग आएंगे, दे हैव बिकम फ्री। सो अब हम्म, नाउ दे, इंसान का नेचर है, जैसे ही होगा सीधा वो प्रोडक्टिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेगा। वो कुछ नया मार्केट में, क्योंकि नॉलेज की तरफ जाएगा, बिकॉज नॉलेज गिव्स हैप्पीनेस, नेचर है हमारा ये फ्रीडम। तो अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर गुड प्रोडक्ट्स, मोर ब्यूटीफुल सोसाइटी, मोर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर कुछ हम्म, बड़ी चीज की, तो बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है, सो कुछ बड़ी प्राइवेट एंटिटी आ जाएगी और वो बोलेगी कि चलो ये बनाना है, तो तुम लोग फंड करेंगे उसको। लाइक देयर विल बी फंडेड होगा, जो भी होगा मार्केट, पीपल फंडेड होगा। तू चाहता है कि हाँ भाई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बने, और उनकी इतनी प्रोजेक्ट की डिमांड है कि 10 बिटकॉइन बना दो, 10 बिटकॉइन दे दो, 10 साल में हम भारत मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना देंगे। ठीक है। सो right, okay, और वो बना देंगे। उसमें से जो टोल टैक्स होगा आपको, आपने अगर 10 बिटकॉइन 100 लोग ने मिलकर दिया, सो हम्म, उसका जो प्रॉफिट होगा 50% आपका, 50% हमारी कंपनी का, जो भी प्रॉफिट आएगा वो। और हमारा ये इस तरह है। सो अच्छा, वो प्राइवेट एंटिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। और साथ साथ ऐसा है कि अब तुम्हारा बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि मनी फिक्स्ड है। हम्म, सो 10 हम्म, बिटकॉइन सोचा था, क्या पता 8 बिटकॉइन में ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। और अगर 10 बिटकॉइन में होता भी है, तो और जितना सोचा था उससे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अभी उल्टा होता है, पहले वो सोचेंगे 10,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बनेगा। अब पता चला कि 10 साल हो गए, महंगाई, पैसों की वैल्यू 4 गुना खत्म हो गई 10 साल में। हम्म,
तो नाउ यू नीड लाइक इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ यू नीड 40,000 करोड़, सब कुछ इतना महंगा हो गया। सो बजट फिर से, तो प्रोजेक्ट अब लेकिन गवर्नमेंट फोर्स करती है कि नहीं नहीं बनेगा पैसा, इस पे ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बजट दे दिया है तुम्हें, अब आगे हर बार देंगे तो नया नहीं, नया कैसे करेंगे काम। सो उनको क्वालिटी घटानी पड़ेगी। और सेंट्रलाइज होने से ये कि पैसा जब ऊपर से जाता है, पैसा तुमने एक तो चुराया सीधा मनी प्रिंटिंग से, और अब तुम धीरे धीरे दे रहे हो, तो बीच में जो भी रहेंगे वो खाएंगे पैसा। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ये करती है कि चलो ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देगी, जो भी उसको सीधा बैंकिंग सिस्टम सुधार अच्छा कर दो तो चला जाए। बट ये तो एक मलम पट्टी लगाना जैसा काम हुआ। मेन प्रॉब्लम है कि तुम पहले पैसे चुराई क्यों रहे हो, लोगों के पास रहने दो, और जिसको वो प्रोजेक्ट में प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा उसको वो करेगा, उसको इंटरेस्ट देंगे, उसको प्राइवेट एंटिटी आएगी उसको इंटरेस्ट देगी। सो बेस्ट थिंग इज डिसेंट्रलाइज, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक 100% सेंट्रलाइजेशन और 100% डिसेंट्रलाइज, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्पेक्ट्रम है ये। So more the system, like more decentralized the system is, more it is resilient against the centralized system. ये हमें फंगस नेटवर्क जो है वो 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ के अंडरग्राउंड। जब जब वो मीटियोर्स गिरे थे, जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे, तब भी वो टिके रहे थे, उन्होंने लाइफ अंदर से फिर से न्यूट्रिशन, वो सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह, लाइक जस्ट रीड अबाउट फंगस सिस्टम। इसके लिए बुक है द फैंटास्टिक फंगी। सो जितने भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है वर्ल्ड में वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। इंटरनेट इज डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। फिर जो एंड्स है, ये चींटियां होती है, लीफ कटर एंड्स का फिक्स रूल है कि उनको क्या करना है। दे आर द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, कंप्यूटर साइंस में भी इसको पढ़ाया जाता है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। और वो फंगाई को हार्वेस्ट करती है, वो लीफ लाती है, उनका एक काम है लीफ लाना, एक जगह पर रखती है, फिर वो उसमें फंगी आ जाती है और फंगी को खाते हैं वो। पर वो लाखों करोड़ों चींटियां चलती है, उनका सिर्फ सेम रूल है उनको, लेकिन वो फिक्स रूल है, सबको वही करना है, नहीं करते तो वो उसको खा जाते हैं, मार देते हैं। लेकिन वो उतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन मस्त अंदर बनाते हैं, अंदर वो अपना महल वगैरह इतना जमीन के अंदर बनाते हैं, घर वगैरह। सो लाइक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे अब पता चल रहा है लाइक लास्ट 10-20 साल से, लेकिन डिसेंट्रलाइज पे अपने शास्त्रों में हजारों साल से बात कर रखी है कि पावर को कभी केंद्रित नहीं करना चाहिए, पावर को डिसबर्स कर लो, जिस पावर कभी किसी का लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इट कम्स विद बेड। तो जो भी गलत करता है उसको सजा भी मिलेगी, हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दैट इज द रूल ऑफ फिजिक्स और रूल ऑफ यूनिवर्स कि जो भी इस सिस्टम के साथ गलत कर रहा है ना, उनको वो अभी मिल रही होगी, हमें नहीं पता, लाइक अब तभी तो वो लोग, उनको और चाहिए, उनके पास $100 बिलियन है, उनको $100 बिलियन और चाहिए। दे कांट एंजॉय द लाइफ, उनको पता है कि ₹1 वो साथ में लेके नहीं जाने वाला है, सब कुछ छोड़ के जाने वाला है, बट तो भी उनको वो चाहिए। सो दे आर इन कांस्टेंट ग्रीड। तो वो भी एक तरह का कांस्टेंट ग्रीड है, मतलब तुम हैप्पी नहीं हो, हैप्पीनेस तो सेटिस्फिकेशन में आती है, पर दे आर अनसेटिस्फाइड। सो लाइक पुतिन और ये लाइक मेन चीज कि हमें कोई एक इंसान को नहीं वोट करना, ना ही कोई हमें 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 ये देखना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे सिटी में कौन अच्छा काम करेगा, मुझे उसको वोट देना है। मुझे बोल भाई मेरा तू ये तो प्रोजेक्ट है ना, और उसके अंदर अगर 10 म्यूनिसिपैलिटी 10 सरपंच आते हैं तो मैं सरपंच को बोलूंगा, मेरे सरपंच गांव वाले बोलेंगे मुझे ये गांव में ये रोड चाहिए। लोगों को वो डिमांड करनी है नीचे कि मुझे स्कूल चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं कि मुझे सेंट्रलाइज प्रॉब्लम की बात नहीं करनी कि भाई मुझे कोई एक सेंटर में एक लीडर बैठा है, मुझे वही लीडर चाहिए। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम जितना सेंट्रल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज रखोगे उतना यू विल बी रोबस्ट। और पार्टी भी, ऊपर की पार्टी भी उसी कैंडिडेट को चूज करेगी कि जो चुन के आ रहा है, जो जीत रहा है, वो कौन जीत रहा है, जो जनता के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जनता उसकी मांग कर रही है, और जनता कब कर पा रही है, जब जनता एजुकेटेड है। लेकिन जनता एजुकेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि जनता को पिछले 50 साल से ये जो फेयर स्टैंडर्ड आया तब से पूरा उनकी खाने की बात, उनका सर्वाइवल पे अटैक कर दिया है। जब इंसान का सर्वाइवल पे अटैक कर दो तो वो फिर नहीं कर पाएगा कुछ। तो मेजर सर्वाइवल पे अटैक करो, यू कैन रूल। डिवाइड करो, यू कैन रूल। So valid.
दैट इज टुडे सेशन। काफी लंबा हो गया बट अच्छे से डिस्कस किया आज हमने, शायद अच्छे से। डेफिनेटली, एंड इसमें भी लाइक इतनी सारी और चीजें डिस्कस करने को, काफी कुछ है, मतलब मैं बहुत छोटा छोटा ही कर रहा था तो भी 1 घंटा हो जाता है। है ना? हम्म। एब्सोल्युटली। बट दैट्स इन्फ्लेशन। और अब कैसे पावर आती है वो हमें देखनी पड़ेगी, मतलब कि किस तरह आई है वो उनको पता है, सारे वो जो सप्लाई चेन में लोग, उनको सबको पता है कि कैसे हमारी पावर है, कैसे हमें कुछ बोल नहीं सकते। बट ये हुई फियाट से ही हुई है। अब फियाट आई और लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया 1971 में, गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, तब लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, वो मुझे नहीं अभी तक समझ में आया कि किसी को पता क्यों नहीं चला। और पता चला तो वो लोग उन लोगों को दबाया गया, या फिर लाइक समहाउ दे लॉस्ट कि जो इतना लंबा केपेबल काल लोग चल। थे वो लोग तो वॉल स्ट्रीट में थे उस टाइम पे, बाकी हाँ। सब तो लाइक बहुत ही ज्यादा अनएजुकेटेड थे, एंड जो हम्म वॉल स्ट्रीट वाले थे दे वर प्रिंटिंग, सो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम्म। मेक सेंस। सो ठीक है, लेट्स ओके। कीप आवर सेशन, इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा है। बट यहाँ तक गाइस देखने के लिए थैंक यू। अगर आप देख रहे हो तो लाइक, अगर आपको इसका सॉल्यूशन बिटकॉइन है, बट इट विल टेक टाइम। और ऐसे भी नहीं कि बिटकॉइन जीत जाएगा, लोगों को बिटकॉइन के लिए डिफेंड करना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए उठना पड़ेगा। पर ये कि अब बिटकॉइनर्स उठ सकता है, क्यों? क्योंकि अब समझो, जो 15 साल से बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, जो 10 साल से कर रहा है, जो 5 साल से होल्ड कर रहा है, दे आर नाउ, उनको अब सर्वाइवल का इतना प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं है उन्हें तो, टू बी फेयर। उनको नहीं है सर्वाइवल का प्रॉब्लम, तो वो फाइट कर सकता है। और ऐसे, और जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है, ऐसे ऐसे न्यू जो अभी होल्डर रिसेंटली आया है, वो 5 साल बाद वो भी पावरफुल हो जाएंगे, तो वो भी अब गवर्नमेंट का विरोध करेंगे 5 साल बाद। तो सो सो मतलब अब एक जो मनी का जो पावर था डिसेंट्रलाइज, वो नहीं पॉसिबल था, लेकिन हमने कभी ऐसी मनी बना दी कि अब वो उसका उसका मनी प्रिंटिंग पॉसिबल नहीं है, न्यू सप्लाई नहीं आ सकती अब। 21 मिलियन तो 21 मिलियन ही है। तो अब जो वो होल्ड करेगा, जो जिसके पास है उसकी वो पावर बढ़ाएगा, उसको पावर देगा, तो वो अब अपने मतलब वो दबेगा नहीं, कहने का मतलब वो दबेगा नहीं। और उसमें से जो अच्छे इंसान होंगे उस बिटकॉइन होल्डर में, वो अब फाइट करेंगे। और और जो जो नेगेटिव या गंदे इंसान हो, वो कितना भी गंदे हो, लेकिन वो अच्छे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके पास मनी प्रिंटिंग की पावर नहीं है, और वो बिटकॉइन को बदल नहीं सकता है। और जब तक, मतलब ये कि जब तक बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज रहता है, जब तक लोग बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज रखते हैं, तब तक बिटकॉइन रहे। जब मतलब है कि जो भी लोग, मतलब वी नीड टू स्प्रेड एजुकेशन ऑफ बिटकॉइन, कि बिटकॉइन क्यों मतलब बिटकॉइन से हम डिसेंट्रलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मनी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि मनी इज द ब्लड ऑफ द सोसाइटी। वो एक लैंग्वेज है, जैसे हमने शुरू में सबसे पहले बात करी थी कि लैंग्वेज जो भाषा है बात करने की, उससे हम आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम जो वैल्यू एक्सचेंज करनी है वो हम मनी से कर सकते हैं। अब वो अब मैनिपुलेटेड नहीं रहेगी, तो अब वो वैल्यू को नहीं चुरा पाएंगे। तो वो अब चाह के भी कितना भी कर ले, दे वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट द वैल्यू सिस्टम। मेरी वैल्यू मेरे पास ही है, और वो आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि मेरा वो इकोनॉमी शेयर था। मैंने आज कोई बिटकॉइन वीडियो बनाया, मुझे उसके रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिले, मैंने उसको होल्ड किया, तो मुझे वो बिटकॉइन मिले क्यों? क्योंकि मैंने उस सामने किसी लोग ने देखे होंगे, जिसको भी मतलब मुझे रिवॉर्ड मिला, किसी ने भी रिवॉर्ड दिया मुझे। तो वो मेरा बिटकॉइन अब ये है कि लाइक 20 साल बाद उसकी कीमत होगी, बिकॉज 20 साल पहले मेरा भी शेयर था इकोसिस्टम में, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन था। सो वो मनी के रिवॉर्ड में मिल रहा है। पर अभी बिटकॉइन एकदम 0.01% ही अडोप्टेड है। तो बिटकॉइन में 2 तरह के गेन है। एक तो एडोप्शन गेन है, जो शुरू में आता है वो, और लाइक अभी इस 15 साल में सिर्फ 0.01% ही अडोप्ट हुआ है। 0.1 या 0.05% अडोप्ट हुआ है। लाइक एवरी 1 इन 2000% होल्ड बिटकॉइन रियली। तो अब नेक्स्ट 15 साल में ऐसा हो सकता है कि वी कैन रीच 20% एडोप्शन या 40% एडोप्शन, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हर एक चीज में ऐसे होता है कंपाउंडिंग। लाइक पिछले तुम 15 साल से बिटकॉइन का तुम ग्रोथ देखो, तो जीरो से ग्रोथ होने में टाइम लगता है, लेकिन लाइक जीरो से अभी बिटकॉइन $64,000 है।
Right. तो कितना गुना हो गया, इनफाइनाइट गुना हुआ, या फिर $10 से कुछ गिनो तो समथिंग गुना हुआ है, टाइम्स हुआ है, बट Hmm. नाउ it needs only be like it only needs to be 2000 times to cover the entire globe's value. सिर्फ 2000 टाइम्स ही होना है. Hmm. सो बिटकॉइन सोल्व करता है, पर Time will tell. लाइक इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये इतने सालों से ये लोग ये मैनिपुलेटेड सिस्टम है इतने सालों से. सो ये लोग भी आराम से छोड़ेंगे नहीं मनी प्रिंटिंग. तो ये लोग बिटकॉइन को बैन करेंगे और लोग बिटकॉइन दे देंगे. मैं तो बिटकॉइन मेरे पास बिटकॉइन नहीं है क्योंकि मुझे अभी विश्वास नहीं है, पर ये कि जब बिटकॉइन आ जाएगा, जब बिटकॉइन Hmm. सिस्टम में, आज मेरे पास बिटकॉइन थे लेकिन एक की खो गई मेरी, सो Hmm. वो बिटकॉइन गए. तो हाँ, और ये कि जब बिटकॉइन मतलब अब हाँ, तुम्हारे पास बिटकॉइन होने की जरूरत भी नहीं है, पता है तुम्हें, क्योंकि पावर डिसेंट्रलाइज हो गई तो दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी. लेकिन फिर उसमें तुम्हें आपका भी तो शेयर कुछ होना चाहिए. हाँ, हाँ, वो होना चाहिए. अगर मैं उसको होल्ड करता हूँ तो होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो और फायदा होगा. पर जब Hmm. बिटकॉइन, जब मान लो कि बिटकॉइन सैलरी में बिटकॉइन चल रहा है, लोग बिटकॉइन Hmm. में ही कम, तो मेरे बिटकॉइन की Hmm. वैल्यू अपने आप बढ़ेगी. You'll be amongst the elite then. That's better. नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा. इलेट में कैसे होंगे, नहीं. वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर मैं 10 बिटकॉइन लेके रख देता हूँ अभी और मैं उसको बेचता नहीं हूँ, हाँ, तो हाँ, that's what I mean. बिटकॉइन, हाँ, लेकिन बिटकॉइन फेल हुआ तो मेरा वैल्यू गई ना सारी. तो लाइक जर्नी टू इलेट इज इट्स हार्ड. और मैं कहूंगा कि लाइक वी शुड नॉट ट्राई टू बी इलीट, बिकॉज पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें लगता है कि हाँ पैसा आ जाएगा, बट वो पैसा दबा देता है हमें. तो हमें उसके लिए उतना रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. Point. मतलब हमने हैंडल नहीं कर पाते, अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे. लाइक हम उसको कहीं स्पेंड कर देंगे, अभिमान आ जाएगा, दुखी हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है. Right. हाँ. फिर मतलब अभिमानी इंसान सुखी खुश नहीं होता, उसको नींद भी नहीं आती रात को उठ के देखता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है. बट कहने का मतलब है कि बिटकॉइन सोल्व करता है इन्फ्लेशन को. इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और लोगों को जागना पड़ेगा, और लोग जाग रहे हैं. जो भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही बिटकॉइन आया है, तो जो यूएस में जो वो लोग परेशान हुए थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उनको समझ में आया कि अरे क्या हो गया, सब मतलब हमारी वैल्यू खत्म हो गई. बहुत लोगों की बड़े बूढ़े लोग जो थे बूमर्स, उनकी वेल्थ उड़ गई है उस टाइम पे. तो वो लोग भी गोल्ड की तरफ झुके. फिर बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन की तरफ झुक रहे. तो अब वो लोग ट्राई करेंगे बिटकॉइन को कैप्चर करने की. Hmm. सो उसके लिए ये फाइट है, सब लोग कर रहे हैं, और हम भी ये बता रहे हैं कि लाइक हमें बिटकॉइन को कैप्चर नहीं होने देना है. संभव यू रीड अबाउट लाइक बिटकॉइन स्केलिंग, बिटकॉइन डेवलपमेंट टेक्निकल तो तू सीख ही रहा है, Yep. किस तरह से बिटकॉइन को तुम कैप्चर कर सकते हो. नेक्स्ट में शायद उस पर डिस्कस करते हैं अपन. हाँ, नेक्स्ट पे अच्छा करते करते हैं ये. हैं, है हाँ. ना. धीरे धीरे लाइक वी कैन स्किप द न्यूज़ पार्ट, या कभी कभी कर भी सकते हैं. बट ये चीज लाइक कभी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे. Today was a very good podcast. I mean, not just as a podcast, but क्योंकि like I mean we've talked about this type of thing before, right? But definitely very nice, very very nice. सो अगर तुझे टाइम मिलता है ना तो तू लाइक फियर स्टैंडर्ड पढ़ सकता है. मैंने नहीं पढ़ी, पर मैंने 2-3 लेक्चर देख लिया, आइडिया लग गया. मैंने ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ पढ़ा है, तो वो आइडिया लग गया. पर मेरा ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है, लाइक ये जो बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर उनके जो ऑथर के जो पॉडकास्ट है वो भी मैंने 2-3 घंटा पढ़ लिए, सुन लिए, तो वो आइडिया लग गया. बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आ रहा है, बिकॉज अपने शास्त्रों में शुरू से ही डिसेंट्रलाइज की बात करी है, आत्म फ्रीडम की बात करी है, इंसान की खुद की चॉइस खुद के हाथ में होनी चाहिए, वो बात करी है. तो उसका मतलब यही होता है, इंसान की खुद की चॉइस खुद के हाथ में होनी चाहिए. Right. तो लाइक बाय स्टीलिंग मनी तुम उसकी चॉइस ले रहे हो उसके हाथ से. सो वो भी खुश नहीं होगा और तुम भी खुश नहीं होगे, क्योंकि तुमने उसकी बिहाफ पर डिसीजन लिया है. सो तुम भी कहीं ना कहीं परेशान हो. तो मतलब सोसाइटी एज ए होल कैन नॉट बी हैप्पी. Valid. Definitely, that's a very interesting point. In fact. और ये सबसे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा, मतलब हमने बहुत ही सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वही टच किया है. और
Yeah, we want, like, money should be free from the control of anyone because it is a language of exchanging the value. कोई बैठा बैठा अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रोल कर रहा है और बोलेगा कि इस शब्द की वैल्यू, इस शब्द की मीनिंग ये नहीं है और है, लाइक मीनिंग चेंज कर रहा है, तो कैसे बात करेंगे हम, कैसे डिस्कस आइडियाज कैसे एक्सचेंज करेंगे? सेम Right. चीज मनी में है, सेम चीज मनी में है कि वैल्यू ही जब मैनिपुलेट हो जा रही, तो हाउ विल आई सेव माय वैल्यू, हाउ विल आई एक्सचेंज माय वैल्यू, हाउ विल आई मेजर समथिंग कि किसकी कितनी वैल्यू है? इसी कारण तो आज काजू बादाम जो इतने इंपॉर्टेंट चीज है, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वो 500-700 रुपीज केजी मिलते हैं, और पिज्जा, शुगर, ये इतना हार्मफुल है, सिर्फ टेस्ट है, 2 मिनट का काम है, उसके बाद उसके नुकसान ही नुकसान है सिर्फ, वो 500 1000 के पिज्जा मिल रहा है। वैल्यू लोग गलत चीज को वैल्यू करने लग गए, मोटापा आ गया लोगों में, डायबिटीज, कैंसर, फिर वो, अरे कितनी चीजें, मतलब कितनी चीजें, लाइक अपने शास्त्रों में तो कहा कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार खाना चाहिए, तुम एक बार खाते हो वो खतरनाक होता है, बहुत अच्छा होता है, उससे तुम्हारी कोई भी बीमारी नहीं आती, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं आती, और आती है तो खत्म हो जाती है, बिकॉज बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। अगर तुम बॉडी को 15-17-18 घंटे कुछ खाते नहीं हो ना, तो बॉडी अपने आप को हील करती है, जो भी प्रॉब्लम है खत्म कर देती है। लेकिन हमने क्या किया, 3-3 बार खाने लग गए, इंडस्ट्री आ गई, खाने लग गए ज़्यादा, सो लाइक कम बीमार पड़ेंगे, फिर मेडिसिन आई, देसी इलाज कर नहीं रहे। तो ये मतलब मेरा कंक्लूजन ये है, और मैं सारी चीज़ बता सकता हूँ, पर कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ये जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में अभी सारी, वो अगर सरकार मनी सप्लाई फिक्स कर दे कैसे भी करके, तो हो सकती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डेफिनेटली फिर बहुत सारी हो ही जाएंगी, 99%। वो करने के लिए एजुकेशन ना बहुत सबसे रूट में आता है, लाइक यू नीड, और लाइक तुम्हें कोई एजुकेशन मतलब कि ज्ञान, नॉलेज, तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए, लाइक व्हाई डू यू नीड नॉलेज, लाइक बिकॉज इट गिव्स हैप्पीनेस, it gives you money, Gives you freedom, it gives you a brain, it gives you the freedom to choose options, it gives you options. it gives you food, it gives you shelter, है ना, काफी चीज देता है। सो बट व्हाई डू वी नीड शेल्टर, व्हाई डू वी नीड फूड, बिकॉज हम उसके बाद, बिकॉज दैट्स आवर बेसिक नेसेसिटी, दैट्स आवर बेसिक नेसेसिटी। करेंगे उसके बिना, खाने को नहीं है तो क्या करेगा इंसान? हाँ, तो मतलब वो हो जाएगा, उसके बाद मतलब इंसान और बाकी लोगों में, एनिमल्स में ये फर्क है कि अदर देन जो भी सारे जितने भी एनिमल्स हैं, उनको फूड मिल जाता है, फूड के बिना वो ऐसे इधर उधर देखेंगे, जैसे ही फूड मिल गया उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। इंसान का उल्टा है, सब जब फूड नहीं है तब उनको सिर्फ फूड ही चाहिए, और जब फूड मिल गया, शेल्टर मिल गया, अब उनको और चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नॉलेज चाहिए, फेम चाहिए, नाम चाहिए, समझ रहे हो, बहुत कुछ चाहिए। तो वो इंसान और उसमें फेम डिफरेंस है, इसके कारण वी आर एबल टू सर्वाइव और वी आर एबल टू कम्युनिकेट। हम इसलिए तो साथ रह पाए कि उसको पता है कि हमें पता चला कि साथ रहने से हम और ग्रो कर रहे हैं, तो वी डेवलप्ड लैंग्वेजेस और सब। यू कैन ऑल्सो रीड द सेपियंस बुक भी है युवल नोआ हरारी की। आई एम नॉट अ फैन ऑफ युवल नोआ हरारी, बट सेपियंस बुक में इंसान का बताया कि हाउ वी आर एबल टू सर्वाइव, हाउ वी आर एबल टू कोऑपरेट, एंड इतना अच्छा सोसाइटी बना पाए हम। वो बुक ही अच्छी है। बाकी युवल नोआ हरारी के आजकल तो वो बकवासी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। वो बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक्स मनी प्रिंट करना चाहिए, मतलब बिटकॉइन आ रहा है इसका मतलब कि तुम्हें लोगों को सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब कि तुम एंटी गवर्नमेंट हो, ये लिटरली बोला, मतलब तुम गवर्नमेंट के विरोध में हो। क्या हो गया? हाँ, नहीं, उसने ये बोला कि अगर मैं तुम तो हूँ। नहीं, लाइक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एंटी गवर्नमेंट नहीं बोलना, बिकॉज इस पे लाइक कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें वो जेल में डाल सकता है कि तुमने एंटी गवर्नमेंट बोला मतलब तुम टेररिस्ट हो, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ यार, गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन मजाक के लिए ठीक है, बोलो तो बोल दो मजाक कर रहा हूँ, तो ठीक है, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पूरी पॉडकास्ट एक मजाक है। अभी जैसे अपनी कोई वीडियो वायरल हो गई, अपनी कोई वीडियो चल गई, तब सीआईडी बैठेगी अपनी वीडियो में, देखेगी उसमें से कुछ गलत बोला होगा ना, उसके हिसाब से हमें जेल में डाल देगी। ये तुमने अच्छा ये गलत बोल दिया कि इंसान का नाम कैसे लिया तुमने,
डिफेमेशन आ जाएगा। इंसान का नाम नहीं लेना कभी भी, इंसान का नाम नहीं लेना, सिस्टम का नाम लो, बिकॉज लॉ ऐसे है, डिफेमेशन पे आ सकते हैं। सो इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए, विरोध करने में सपोर्ट में कर सकते हो, और बिकॉज ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पता नहीं है, कोई भी किसी ने वीडियो शेयर कर ली, कभी भी किसी के पास वीडियो आ गई और शेयर कर ली कोई फेमस अकाउंट ने और चल गई आज नहीं तो 2 साल बाद, तो दिक्कत आ सकती है। पहले तो बोलेंगे वीडियो बंद कर दो, चैनल बंद कर दो, और फिर नहीं करेंगे तो फिर घर पे आ जाएंगे। पॉडकास्टर के पीछे तो आने वाला है गवर्नमेंट, बहुत यूट्यूब को रेगुलेट करने की बात चल भी रही है, पता है, यूट्यूब को रेगुलेट करने की बात चल रही है। यस, यूट्यूबर्स कौन कर रहा है, बात हो रही है, मद्रास हाई कोर्ट से बात उठी है, क्या बोलना है, क्या होना चाहिए, देयर आर सम रूल्स, लाइक सेंसरशिप आने वाली है इंडिया यूट्यूब में स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। So like Nostr, we will go to Nostr, we'll move towards Nostr. Nostr won't actually protect us then. It will help with censorship definitely, but if someone is really targeting us, it won't help us with that. हाँ, बट फिर उसमें ऐसा हो जाता है ना, नहीं वो फेमस को टारगेट करेंगे। यूट्यूब में ऐसा है कि कोई ज्यादा बोलेगा तो उसको बंद कर दो, तो बन जाता है। लेकिन जब तुम रोक नहीं सकते किसी को, तो इंसान को जब फ्रीडम मिलता है तो हर कोई आएंगे नोस्ट पे बोलने, तो फिर तब ऐसा किसको रोकेंगे, फिर ऐसा रह जाए किसको रोकेंगे, मतलब कहाँ कैसे रोके, वो इट्स हार्ड, रोकना हार्ड हो जाए, घर पे आना मुश्किल हो जाएगा, सो नहीं कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी कि तुम अपना एआई से वॉइस और फोटो दोनों चेंज करके डाल रहे हो नोस्ट लो, फिर क्या कैसे रोकेंगे, आईपी एड्रेस कैसे करेंगे, लाइक हार्ड है। सो जो बोलने वाली पब्लिक है उनको रोका नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नोस्ट डेवलप हुआ तो पॉइंट, पर ठीक है, नहीं हुआ तो अपन करेंगे डेवलप आगे जाके। मतलब ये है कि अब लाइक व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, तो फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती, फ्रीडम छीननी पड़ती है, स्वतंत्रता छीननी पड़ती है। तो लाइक लोग लड़ रहे हैं, हाँ मैंने नहीं कहा, लोग आई थिंक कोई यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने कहा है कि स्वतंत्रता छीननी पड़ती है, तुम्हें दी नहीं जाती, स्वतंत्रता कभी देते नहीं है, तुम्हें छीननी पड़ती है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। 1.5 आवर पॉडकास्ट, अगर किसी ने देखा होगा तो मजा आ जाएगा उसको। यहाँ तक सत्संग को सब्सक्राइब करो, और लाइक वी कैन कर सकते, धीरे धीरे देखते क्या फ्लो जाता है। अगर हिंदी ही कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लाइक एनीथिंग इज वैलिड। ओके गाइस, ओके संभव, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।